कि इन दिस ट्रेनिंग बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर द F5 DNS। मैंने बताया आपको कि बिग आईपी जीटीएम में, बिकॉज पहले रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी, राइट, वी वर नॉट रिकॉर्डिंग दी सेशन। तो एट दैट टाइम आई सेड दैट DNS is a module of the F5, one of the module, right? One of the additional module apart from LTM, because we already covered the LTM, so we know that what is the meaning of LTM module. So in similar way, we have a F5 DNS module, and the objective of the F5 DNS module would be to resolve your names into an IP addresses. That's the major role of the DNS. Now in backend, obviously it can perform load balancing, it can perform monitoring, it can perform, like, it has so many different features, right? But the objective of the F5 DNS, because it works as a DNS server. Hear me out, right? Listen me carefully, that it is a DNS server. Seriously, I'm telling you that it is a DNS server. The F5 DNS module is going to work as a DNS server. And you know that what is the role of the DNS server in the internet world. So mainly, obviously DNS is responsible to translate your names into an IP addresses, because nowadays we are accessing internet using names only, right? Like whether you are accessing facebook.com, google.com, whatever, even www.imedita.com, whatever website you are trying to access nowadays, you access them using their names. But in backend, every application server or every application has got an IP address in backend. Now we don't remember their IP addresses and we don't want to, right? So then what is the how come then you can access those applications? So that's the reason that we have got the DNS, right? So DNS helps us to resolve names into an IP address. So for example, if I have got one, let's say, let me open up one tab here, right? So I'll open one tab, and let's say if I am trying to access, for example, imedita.com. So I am trying to access that application using its name, correct? So now, since I'm accessing it, I'm accessing iMedita application using its name. So obviously in backend, something should happen, right? Something should be working to translate this name into an IP address. Do you agree, Vishal, or not? Do you agree with this statement कि backend में ये name जो है वो IP address में translate होना चाहिए? Srinivas, do you all agree? Yes. So that is the work done by the DNS. तो अभी अगर मैं यहाँ पे if I take the packet captures on my machine, let's say, अभी ले नहीं रहा हूं मैं वो, but if I take the packet captures on my machine using Wireshark, then we can see कि जो 3-way हैंडशेक हुआ होगा imedita.com एप्लीकेशन सर्वर के साथ, उससे पहले DNS प्रोसेस परफॉर्म हुआ होगा, राइट? सबसे पहले DNS हिट हुआ होगा। अब इसमें दो चीजें हैं, एक इसके लोकल कैश में भी हो सकती है एंट्री कभी कभी मशीन के, अगर वो लोकल कैश में एंट्री है इसके, would not require to generate the DNS request again for this name. But if there is no entry in its cache, obviously then it will have to send this DNS request for the DNS server. And that's the reason that you always have to allocate the DNS server IP address onto your machine. So for example, if you have got a laptop or desktop, तो आपने देखा होगा, राइट, आपने देखा होगा कि आप ये आईपी एड्रेस एलोकेट करते हो, एंड आईपी के साथ साथ आप क्या एलोकेट करते हैं? डीएनएस सर्वर्स। अभी ठीक है, इफ आई कीप माय डीएनएस server address automatically, right? Like if I obtain DNS server IP address automatically, so I'll get the service provider DNS servers, right? But since I wanted to use the open DNSs like the Google DNS and then the Amazon DNS, so that's the reason that I have put the DNS server IP addresses manually here, right? That's the only reason. There is, I mean, do not think anything else. I mean, do not think in other way. Okay, but at the end, your machine must have a DNS server IP address configured, correct? So what happens is that when you try to access anything with its name, so first it sends a DNS request to the DNS server, to the configured DNS server. So what if you do not configure the DNS server? Obviously, you would not be able to access anything, right? Because then your machine doesn't know that who the DNS server is. And if your machine doesn't have any information that who the DNS server is, then how come your machine would send out the DNS request asking for an IP address against the name that you are trying to access? Correct? मतलब जो भी आप नेम को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं,
उसका आईपी एड्रेस कैसे निकाल पाएगी आपकी मशीन अगर यहाँ पे डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर्ड नहीं है? तो ये जो बेसिकली डीएनएस सर्वर वाला टास्क है ना, वो आपका F5 GTM, या जिसको अब आप क्या कहते हो, F5 डीएनएस, राइट? पहले हम इसको जीटीएम बोलते थे, दैट वाज ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर। बट अभी 2 साल से, आई बिलीव 2 years बिफोर, F5 रीनेम्ड जीटीएम टू डीएनएस। बस रीनेम किया, बाकी फीचर लिस्ट तो वैसे ही है, ठीक है, वो आपके वर्जन चेंज होते रहते हैं, कुछ बग फिक्सेस होते हैं, कुछ नए कुछ एक दो न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। बट जो जीटीएम था वही डीएनएस है यहाँ पे। पहले इसको हम F5 बिग आईपी जीटीएम यहाँ पे मेंशन करते थे, बट जीटीएम की जगह पे अब डीएनएस आने लगा है। तो चैप्टर जो आपका चैप्टर 2 है, दैट इज ऑल अबाउट द डीएनएस। मतलब यहाँ पे मैं आपको बेसिकली डीएनएस एक्सप्लेन करने वाला हूँ, हाउ डज दिस वर्क, डीएनएस कैसे काम करता है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है डीएनएस के अंदर ना, जैसे रूट डोमेन हो गए, है ना, टॉप लेवल डोमेन्स हो गए, जिनको टीएलडी बोल देते हैं कई बार शॉर्ट फॉर्म में, टीएलडी टॉप लेवल डोमेन। फिर आपके सब डोमेन्स हो गए। तो वो समझना थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डीएनएस कैसे रिजॉल्व होता है, डीएनएस सर्वर क्या होता है, डीएनएस क्लाइंट क्या होता है, वो थोड़ा सा इकोसिस्टम डीएनएस का आपको समझना जरूरी है बिफोर बिगनिंग विद द F5 डीएनएस मॉड्यूल। मतलब जब आप F5 डीएनएस पे इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करोगे तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि आपको डीएनएस की इंफॉर्मेशन है, आपको पता है कि हाउ डीएनएस वर्क्स, ठीक है। तभी आपको ये F5 GTM की जो फंक्शनैलिटी है या F5 DNS की जो फंक्शनैलिटी है वो आपको समझ में आएगी। अगर आपको DNS की फंक्शनैलिटी नहीं आती है, इफ यू आर नॉट अवेयर विद द फंक्शनैलिटी ऑफ द F5 DNS, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए समझना ये सब चीजें। ये है चैप्टर नंबर 2। उसके बाद है आपका एक्सेलरेटिंग डीएनएस रेजोल्यूशन। तो एक ये जो तरीका है, जो चैप्टर नंबर 3 है, बेसिकली इसमें हम क्या समझते हैं कि हाउ कैन वी एक्सेलरेट द परफॉर्मेंस ऑफ द डीएनएस बाय लेवरेजिंग F5 डीएनएस मॉड्यूल। मतलब यहाँ पे हम अपने बिग F5 डीएनएस को, डीएनएस के ऊपर कोई डीएनएस सर्वर या डीएनएस एंट्रीज क्रिएट नहीं करेंगे, बट इसको एज ए प्रॉक्सी यूज करेंगे डीएनएस के लिए। और हम देखेंगे कि वी कैन रियली एक्सेलरेट द परफॉर्मेंस ऑफ द डीएनएस। मतलब you can keep using your existing DNS servers. Let's say you were having some Microsoft DNS servers. You can keep using them. That's okay. But at same time, if you introduce the big IP DNS into your network, you can see that you can accelerate the performance of the DNS by using a couple of methods. So there are a couple of methods that you could leverage to improve the performance of the DNS resolution, right? So you have got like multiple options, such as obviously you can configure DNS caching, right? So you can enable caching to accelerate the DNS resolution. So in caching, what happens is that first thing is first, that all the DNS requests should traverse through the big IP DNS, and then it should get landed onto backend DNS servers. And then in similar way, response should come back. So if response is coming back at that point of time, big IP DNS can cache those entries or can cache those DNS responses, right? So in future, if any client, if any user machine is trying to send the DNS request, it will go to big IP DNS, and big IP DNS will see, okay, I have an entry in my cache. So now big IP DNS can provide the response from local cache. Your DNS request does not need to reach out to the backend DNS server, and then that does not needs to be processed by the backend server. So that's an advantage of getting caching enabled, and this is how it works, right? So I will explain all those things in more details, but for now I'm just giving you an introduction, right? So this is all about the acceleration or accelerating DNS resolution, right? तो आप DNS resolution जो process आपका, उसको आप improve करते हो by leveraging that feature, those features, right? उसके बाद है implement intelligent DNS resolution, और एक यही तो है intelligent DNS resolution. That's why this F5 DNS became so popular. अगर हम आज, आप लोग बैठे हो ना इधर ये F5 DNS समझने के लिए, like Srinivas joined this class only for F5 DNS, only for the F5 DNS technology. So this is happening just because of this feature, this particular feature, इंटेलिजेंट डीएनएस रेजोल्यूशन। बस यही तो इंप्लीमेंट करते हैं हम प्रोडक्शन में, क्योंकि जो ट्रेडिशनल डीएनएस सर्वर्स हैं उनमें इंटेलिजेंस नहीं होती है। अगर आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर्स हैं, लाइक, तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर्स की बात करोगे तो आइडियली आप जाते हो और उधर वो
डीएनएस सर्वर इंप्लीमेंट करते हो, आप वो होस्ट एंट्री क्रिएट करते हो और छोड़ देते हो। अब उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर को माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर वुड नॉट हैव विजिबिलिटी की जो एंट्री आपने क्रिएट की है वहां पे वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट अवेलेबल है या नहीं है। तो मॉनिटरिंग नहीं कर सकता वो, ठीक है। अब मॉनिटरिंग नहीं करेगा तो फिर इंटेलिजेंटली रेस्पॉन्स भी नहीं दे पाएगा वो। तो मॉनिटरिंग होती ही नहीं है माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर्स के ऊपर, राइट। तो फिर वहां पे आपको जरूरत पड़ती है F5 डीएनएस जैसे प्रोडक्ट की, राइट, जो कि एक इंटेलिजेंट डीएनएस रेजोल्यूशन परफॉर्म कर सकता है। अब इसमें बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं इंटेलिजेंट डीएनएस रेजोल्यूशन में। जैसे आप आप बोल सकते हो कि लेट्स से आई हैव गॉट मल्टीपल डेटा सेंटर्स अक्रॉस द ग्लोब, राइट। ऑब्वियसली होते ही हैं, अगर कोई आपकी एमएनसी होगी, कोई इफ देयर इज ए बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके जो डेटा सेंटर्स होंगे वो अक्रॉस द ग्लोब होंगे। जैसे गूगल इज वन ऑफ देम, राइट। तो आप देखोगे कि गूगल के डेटा सेंटर्स एपैक रीजन में भी होंगे, फिर वो आमेर रीजन में भी होंगे, और नॉर्थ वेस्ट दोनों में आमेर के अंदर। उसके अलावा फिर आपका ईमिया रीजन में भी होंगे, राइट। तो लाइक इन ईच रीजन यू वुड सी दैट गूगल हैज देयर ओन डेटा सेंटर्स। अब होता क्या है कि जब क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी, डीएनएस सर्वर तो दुनिया में एक ही है ना, वो 8.8.8, उसी को हिट करते हो ना आप। ऑल ओवर दी वर्ल्ड यू यूज द सेम गूगल डीएनएस सर्वर, राइट। अब if you are using Google DNS server and if you are trying to access google.com or whatever, maybe youtube.com or any other application that belongs to Google, right? जब आप उसको एक्सेस करते हो तो आइडियली गूगल क्या करता है, आपको आपको रिडायरेक्ट करेगा आपके नियरेस्ट डेटा सेंटर के पास। वो आपकी कंट्री में हो सकता है, वो आपके रीजन में हो सकता है, व्हाटसोएवर, बट वो आपको आपके नियरेस्ट डेटा सेंटर पे लेकर के जाएगा। दैट मीन्स कि जब आप www.google.com के लिए डीएनएस रिक्वेस्ट जनरेट करोगे तो कुछ तो उसके पास मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो देख पाए कि ये जो डीएनएस रिक्वेस्ट है वो आमेर रीजन से आई है, या वो ईमिया रीजन से आई है, या फिर ये एपैक रीजन से आई है, और फिर उसके बाद डिसीजन ले कि कौन से डेटा सेंटर का आईपी इसको रिस्पॉन्स में देना है। क्योंकि जो गूगल एप्लीकेशन है वो तो हर एक डेटा सेंटर में होस्टेड है, ऑब्वियसली। ये तो करना ही पड़ेगा ना आपको कि इफ यू हैव गॉट एप्लीकेशन देन यू नीड टू मेक श्योर दैट दैट एप्लीकेशन, दैट कॉमन एप्लीकेशन, दैट सिंगल एप्लीकेशन इज होस्टेड अक्रॉस ऑल डेटा सेंटर्स, राइट। कहीं किसी भी डेटा सेंटर से वो एक्सेस होनी चाहिए एप्लीकेशन। बट एट सेम टाइम यू वांट कि ठीक है, जिस रीजन में जो डेटा सेंटर है वो उस रीजन के यूजर्स को अकोमोडेट करे एज लॉन्ग एज दैट डेटा सेंटर इज अवेलेबल। आई मीन व्हेन आई से डेटा सेंटर अवेलेबल, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी से कि एज लॉन्ग एज एप्लीकेशन इज रनिंग इन द लोकल डेटा सेंटर, ऑल द यूजर्स विद इन दैट रीजन शुड हैव एक्सेस टू दैट एप्लीकेशन फ्रॉम द लोकल रीजन डेटा सेंटर और रीजनल डेटा सेंटर। करेक्ट होना चाहिए ऐसा कि नहीं होना चाहिए? यस यस, दिस इज व्हाट शुड हैपन, राइट। कि राइट। ठीक है, जो अवेलेबल है मेरे रीजन में डेटा सेंटर में वहां से एक्सेस करूं, राइट। और उसमें फिर ये भी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि अगर इन केस वो जो हमारा प्राइमरी डेटा सेंटर है, लेट्स से इफ दैट गोज डाउन, तो फिर F5 आई टेक द नेम ऑफ डीएनएस, तो फिर डीएनएस के पास ही कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसको पता चल जाए कि प्राइमरी इज डाउन नाउ, and therefore I should start providing an IP address of the secondary data center in my DNS responses, right? So that the end users would have access to the application using secondary data center, and जो हमारे end users हैं they would never come to know कि कुछ हुआ है, कुछ डाउन हुआ है। नो क्यों? क्योंकि वो थोड़े मैं देखते हैं, वो तो नेम से एक्सेस करते हैं ना। बैकएंड में क्या आईपी मिल रहा है कभी आप चेक करते हो एज ए एंड यूजर? आप एंड नो, यूजर के पर्सपेक्टिव से सोचो, राइट। Do you really care कि what IP address you are getting in the DNS response and from which data center you are having access to the application? Do you really care about that? No. The only thing that you care about is the availability of the application and the performance of the application, isn't? right. So, and that's what F5 DNS would help you to make sure that your applications are always available. And not only DNS, basically, it is the ecosystem of the F5 that they have built, right? Like they have built F5 DNS, then LTM. So LTMs are also equally responsible as you have DNS, right? It's just that LTM is doing load balancing locally within a data center, whereas GTM would help you to perform load balancing globally across the data centers. Does that make sense? Yes, yeah. Yeah. So yeah, I mean that's what. तो वापस आते हैं इधर अब इंटेलिजेंट डीएनएस रेजोल्यूशन पे। सो यू हैव गॉट सो मेनी थिंग्स लाइक डेटा सेंटर्स आपको कॉन्फ़िगर करने होते हैं डीएनएस पे, फिर आपको डीएनएस सिस्टम्स को या जो बिग आईपी सिस्टम्स होते हैं उनको एज ए सर्वर आपको ऐड करना होता है, चाहे वो आपके बिग आईपी डीएनएस हो, चाहे वो आपके बिग आईपी एलटीएम्स हो। उनको एज ए सर्वर आप ऐड करते हो अपने डीएनएस के ऊपर।
फिर उसके बाद आप आई क्वेरी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कराते हो बिटवीन बिग आईपी डीएनएस एंड बिग आईपी एलटीएम। अभी आई क्वेरी क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है, कौन से पोर्ट नंबर पे काम करता है। F5 का अपना प्रोटोकॉल है ये, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना सिस्को प्रोप्राइटरी, वैसे F5 प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है ये। फिर जरूरी नहीं होता कि जो F5 डीएनएस है वो सिर्फ F5 सर्वर्स को ही सपोर्ट करेगा, मतलब F5 एलटीएम के साथ ही काम करेगा, राइट। अगर आपको F5 डीएनएस के ऊपर डायरेक्टली अपने नॉन F5 सर्वर्स को ऐड कराना है, जैसे कभी कभी क्या होगा कि यू हैव गॉट ए विंडोज सर्वर जहां पे आपने एप्लीकेशन होस्ट की हुई है, उसके लिए कोई एलटीएम सर्विसेज आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस सर्वर को भी या उस सर्वर के लिए भी आप F5 डीएनएस पे डायरेक्टली एंट्री क्रिएट करा सकते हो। दैट्स डूएबल एंड आई हैव डन दैट अ लॉट, मतलब मैं पर्सनली कर चुका हूँ वो काम, जहां पे हमने मैंने देखा है कि we do not require any LTM to perform kind of load balancing. Why? Because we have got a standalone server. तो आप देखोगे कि जब भी आपके पास एक स्टैंडअलोन सर्वर होगा तो आप उसके लिए कभी एलटीएम सर्विसेज को यूज करते नहीं है। तो उस केस में इफ यू वांट टू एक्सेस दैट एप्लीकेशन यूजिंग नेम, देन यू हैव टू क्रिएट एन एंट्री ऑन योर DNS, and that's how you add the non big IP DNS then, right? So non F5 server to the big IP DNS, correct? तो फिर यहाँ पे फिर एक वाइड आईपी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, फिर यहाँ पे वाइड आईपी के साथ साथ फिर यहाँ पे आपका, अब ये वाइड आईपी क्या है वो भी आपको बताना पड़ेगा मुझे कि वाइड आईपी क्या होता है, राइट, और वाइड आईपी पूल्स क्या होते हैं, ये सब चीजें आप देखोगे कि किस तरीके से हम इसको बिल्ड करेंगे, राइट। तो वाइड आईपी बेसिकली जैसे इसका नेम है ना वाइड आईपी, तो ऐसे मत सोचना कि एक कोई ऐसा आईपी एड्रेस होगा जो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि नेम से तो ऐसे ही लग रहा है ना इंग्लिश में। इंग्लिश में तो ये लिखा हुआ है वाइड आईपी, वाइड का मतलब क्या होता है, बड़ा, तो ऐसा होगा कि इट्स अ बिग आईपी एड्रेस, राइट, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि बिग आईपी का मीनिंग भी ये नहीं कि आईपी बड़ा हो गया आपका राइट, बिकॉज F5 यूज दोस टर्मिनोलॉजीज आर रियली कंफ्यूजिंग, राइट। जैसे बिग आईपी की बात करोगे तो बिग आईपी मतलब बड़ा आईपी, यहाँ पे वाइड आईपी डाल दिया, राइट। वाइड आईपी का मतलब क्या है, वाइड आईपी मतलब कुछ अलग से आईपी यूज कर रहे हैं ये नहीं, है ना। तो हम समझेंगे इसको कि वाइड आईपी क्या होता है। बेसिकली जो वाइड आईपी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये ऐसे मान के चलो जैसे आप होस्ट ए एंट्रीज क्रिएट करते हो ना आप, मेनली देखना आप यहाँ पे भी F5 डीएनएस में भी आप होस्ट एंट्री क्रिएट करोगे मैक्सिमम टाइम, और उसके लिए आपको फिर ये वाइड आईपी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वाइड आईपीज आप क्रिएट करोगे। और वाइड आईपीज को क्रिएट करके आप लोकली एंट्रीज क्रिएट करते हो कि इफ somebody इज आस्किंग फॉर www.google.com, तो दिस इज गोइंग टू बी एन आईपी एड्रेस, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं। तो वाइड आईपी आप कॉन्फ़िगर करते हो, वाइड आईपी कॉन्फ़िगर करने के बाद एक पूल क्रिएट करते हो, और उस पूल में वो सारे वर्चुअल सर्वर्स के आईपी एड्रेसेस डालोगे आप जो उस एप्लीकेशन को सर्विसेज दे रहे होंगे, और फिर वो पूल एसोसिएट करते हो आप वाइड आईपी के साथ, और उसमें साथ में लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम आप डिफाइन करते हो। सो बेसिकली आपने एक नेम डिफाइन किया www.google.com, और उसके साथ आपने एक एसोसिएट कर दिया पूल। उस पूल में से आपका जो F5 GTM होगा, F5 DNS होगा, वो कोई एक आईपी एड्रेस पिक करके DNS रिस्पॉन्स में देगा बेस्ड ऑन लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम। बाय डिफॉल्ट राउंड रोबिन रहता है, तो राउंड रोबिन के केस में तो ये होगा कि इफ यू हैव गॉट लाइक two pool members like you had active data center and then you had maybe I mean kind of primary DC and then DRDC, वो दोनों डेटा सेंटर्स के आईपीस आप उस पूल में रखोगे, तो F5 डीएनएस क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट राउंड रोबिन फैशन में वो कब एक डीएनएस रिक्वेस्ट आएगी तो उसमें प्राइमरी डीसी का आईपी देगा, और दूसरा डीएनएस रिक्वेस्ट आएगी किसी दूसरे क्लाइंट से, तो फिर उसको वो दूसरे डीआरडीसी का आईपी एड्रेस दे देगा। अब लेट्स से यू वांट कि नहीं, मेरे को तो सिर्फ प्राइमरी डीसी का ही आईपी देना है डीएनएस रिस्पॉन्सेज में, एज लॉन्ग एज प्राइमरी डीसी इज अप एंड रनिंग, मैं सिर्फ प्राइमरी डीसी का ही आईपी डीएनएस रिस्पॉन्सेज में देना चाहता हूँ, राइट। एंड इन केस if primary DC goes down, then only my DNS F5 DNS should start providing an IP address of the DRDC. This is what I want. I don't want कि मेरा जो F5 DNS है वो DRDC का IP एड्रेस दे प्राइमरी DC के होते हुए, मेरा प्राइमरी DC भी यहाँ पे फिर भी मेरा F5 DNS DRDC का IP एड्रेस वो रेस्पॉन्स में दे रहा है। I don't want that. तो उसके लिए फिर आपको लोड बैलेंसिंग को मॉडिफाई करना होता है। एज आई सेड कि बाय डिफॉल्ट होता है राउंड रोबिन, तो फिर उस केस में तो वो देगा, बट देन यू कैन चेंज इट टू सम अदर लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम, जैसे
मोस्टली अगर आप देखोगे प्रोडक्शन में तो वो होता है ग्लोबल अवेलेबिलिटी। ग्लोबल अवेलेबिलिटी में क्या होगा, आपको एक प्रायोरिटी देनी होगी कि कौन सा डेटा सेंटर प्रायोरिटी वाला डेटा सेंटर है, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी किस डेटा सेंटर को है, प्राइमरी डेटा सेंटर कौन है, वो आप डिफाइन करो। अब जब तक वो अवेलेबल है तब तक वो किसी दूसरे आईपी को डीएनएस रिस्पॉन्स में नहीं देगा, तो वो ग्लोबल अवेलेबिलिटी हम चेंज कर लेते हैं, मतलब लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम चेंज कर लेते हैं पूल के अंदर। तो वही सारी चीजें हैं कि वाइड आईपी कैसे डिफाइन करोगे, पूल कैसे बनाओगे, है ना, उनका उनको मॉनिटर कैसे करोगे, वही सब चीजें हैं। तो ऐसे मान के चलो, जैसे पहले आप एक एलटीएम के ऊपर वर्चुअल सर्वर क्रिएट करते थे, उसके साथ एक पूल एसोसिएट करते थे। फिर जो वर्चुअल सर्वर का स्टेटस है वो पूल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता था, पूल के अंदर पूल मेंबर्स होते हैं, पूल का स्टेटस मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। सो इट्स लाइक क्वाइट सिमिलर, राइट, जो आप एलटीएम में करके आए हैं। फिर यहाँ पे एलडीएनएस प्रॉप्स एंड मैट्रिक्स आप यूज कर लेते हो टू टेक द इंटेलिजेंट आई वुड से, टू टेक द इंटेलिजेंट डिसीजंस। तो अगर आप इंटेलिजेंटली डिसीजंस लेना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे एलडीएनएस प्रॉप्स एंड मैट्रिक्स को कॉन्फ़िगर करना होता है। तो आप जब उनको यूज करोगे एलडीएनएस प्रॉप्स एंड मैट्रिक्स को, तो आप इंटेलिजेंट डीएनएस रेजोल्यूशन परफॉर्म कर पाओगे, है ना। देखो जैसे ही आपने क्या कवर किया यहाँ पे, एलडीएनएस प्रॉप्स एंड मैट्रिक्स, उसके बाद आप क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इंटेलिजेंट डीएनएस रेजोल्यूशन। तो उसमें आपके पास लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम हो जाती है, जैसे राउंड रोबिन रेशियो, ग्लोबल अवेलेबिलिटी, स्टैटिक परसिस्ट। ये सब तो क्या है, स्टैटिक लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम है। इसके लिए आपको किसी एलडीएनएस प्रॉब या मैट्रिक कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होगी। बट अगर आप डायनामिक लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम्स की बात करोगे या मेथड्स की बात करोगे F5 डीएनएस पे, तो उसमें आ जाता है राउंड ट्रिप टाइम, या कंप्लीशन रेट आ जाता है, या लीस्ट कनेक्शन आ जाता है, या हॉप्स आ जाता है। तो इसके लिए फिर आपको जरूरत होगी कि आप पहले क्या इनेबल कराएंगे, एलडीएनएस प्रॉप्स एंड मैट्रिक्स, उसके बाद ही आप ये डायनामिक लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम्स आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरीके से हम क्वालिटी ऑफ सर्विस, एक टर्मिनोलॉजी होती है। अब इसका मीनिंग वो वाला क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं है जो आपने कभी से इसको राउटर पे कॉन्फ़िगर किया हो कि पॉलिसर लगा दो, शेपर लगा दो, क्यूज बना दो, वो वाला नहीं है। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस को आप एज ए लोड बैलेंसिंग यूज कर सकते हो। होता क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी कंपोनेंट्स। लाइक अगर मैं यहाँ पे कंप्लीशन रेट, सीपीयू, हॉप, सब कुछ मिला के एक लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम बनती है, और जिसको हम कहते हैं क्यूओएस, क्वालिटी ऑफ सर्विस लोड बैलेंसिंग। मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस लोड बैलेंसिंग ही बोलेंगे, क्यूओएस नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्यूओएस बोल के फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्वालिटी ऑफ सर्विस ही बोलो, ठीक है। तो ये तब वो टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि डायनामिक परसिस्टेंस कैसे काम कर रही है यहाँ पे, स्टैटिक परसिस्ट लोड बैलेंसिंग कैसे काम कर रही है, रेशियो लोड बैलेंसिंग, ग्लोबल अवेलेबिलिटी, ये सब टेस्ट हैं। ऊपर ये क्या था कि ये सब आपको समझना है थियोरेटिकली, राइट। उसके बाद जो टेस्टिंग करनी है, जो लैब्स परफॉर्म करनी है, वो ये एल्गोरिदम्स हैं। जैसे डायनामिक परसिस्टेंस क्या होगा, स्टैटिक परसिस्ट, लोड रेशो, है ना, ग्लोबल अवेलेबिलिटी, मैनुअल रिज्यूम क्या होगा इसमें, ठीक है। और लास्ट में है टोपोलॉजी लोड बैलेंसिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। टेस्ट टोपोलॉजी लोड बैलेंसिंग, टोपोलॉजी में ही वो हम करते हैं जो बताया था ना आपको। जैसे कंट्री के बेसिस पे कि इस कंट्री से रिक्वेस्ट आए तो ये रिस्पॉन्स जाना चाहिए, डीएनएस रिस्पॉन्स में ये वाला आईपी जाना चाहिए। या इस रीजन से, पैक रीजन से आए तो फिर ये, ईयू से आए तो ये, आमेर से आए मतलब जो यूएस रीजन है वहां से रिक्वेस्ट आए तो ये वाला रिस्पॉन्स जाना चाहिए। वो सब आप यहाँ पे किस में डिफाइन कर सकते हैं, टोपोलॉजी के अंदर, राइट। तो वो उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी लोड बैलेंसिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो सेक्शन है ना आपका। ये जैसे चैप्टर नंबर एक तो आपका 4 हो गया, चैप्टर नंबर 5 हो गया, और चैप्टर नंबर 6, इसमें भी 4 और 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बाकी तो उतना नहीं है। 4 और 6 कर लोगे तो दैट मीन्स कि यू आर नाउ प्रीटी मच गुड विद F5 DNS, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है चैप्टर 7, जिसमें कि खाली मॉनिटरिंग है, ठीक है। तो आप मॉनिटर करते हो कि आपके जो जैसे आप बनाते हो ये वाइड आईपी पूल्स एंड ऑल, तो वो सब अवेलेबल कैसे कैसे उनको मॉनिटर कर सकते हो, उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, है ना। तो वो सब मॉनिटर्स का क्या इम्पैक्ट आएगा डीएनएस रेजोल्यूशन पे, तो वो सब चीजें आप देखोगे, राइट। फिर यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो जैसे आप कई बार देखोगे कि डीएनएस सैक इनेबल कर देते हैं डीडोस अटैक से बचने के लिए, राइट। डीडोस अटैक से बचने के लिए डीएनएस सैक इनेबल कर सकते हैं। तो वो डीएनएस सैक का आप देखोगे कि किस तरीके से इनेबल करा सकते हो आप। आई रूल्स का देखोगे कि आई रूल्स विद वाइड आईपी कैसे यूज कर सकते हो, या फिर अ, आप कैसे
रिसोर्स अवेलेबिलिटी के लिए अपनी लिमिट्स को सेट कर सकते हो। वो एक दो चीजें आएंगी, छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका वाइड आईपी पूल बेस्ड ऑन क्लाइंट आईपी एड्रेस, ये भी आप कर सकते हो बेस्ड ऑन आई रूल्स, है ना। आई रूल को यूज करके आप ऐसा कर सकते हो। बाकी इंट्रोड्यूसिंग अदर वाइड आईपी टाइप्स, ठीक है। और फिर आपका आ जाता है इसमें हाई अवेलेबिलिटी। और ध्यान रख से देखो यहाँ पे सिर्फ सिंक ग्रुप है, फेलोवर नहीं है। जैसे आपने एलटीएम में किया था ना, फेलोवर प्लस सिंक, याद आया कुछ? कराया था मैंने, बड़ा अच्छा टाइम लेकर के आपको एलटीएम में कराया था, फेलोवर प्लस सिंक। वो वाला मेथड ही नहीं यूज करते हम यहाँ पे। डीएनएस में फेलोवर वाला यूज ही नहीं करते हैं। डीएनएस में हम यूज करते हैं सिंक ओनली ग्रुप, सिर्फ सिंक कराते हैं। मतलब एक्टिव एक्टिव मोड में यूज करोगे आप इन दोनों को ना, एक्टिव एक्टिव मोड में। और कॉन्फ़िगरेशन सिंक कराते हैं। सिंक कराने से क्या होगा कि अगर एक डिवाइस के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो ना, तो वो दूसरे पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अब अगर एक डीएनएस डाउन होता भी है तो दूसरे पे वो सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होगी, एंड यू विल कीप यूजिंग दैट। तो सिंक ओनली ग्रुप्स बनते हैं इसमें डीएफआई डीएनएस के केस में, तो वो आप देखोगे, ठीक है। बस बाकी तो लास्ट में एक छोटा सा प्रोजेक्ट है ये, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। यही है सब, यही है डीएनएस में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, राइट। So I hope everybody understood ki which all topics you would be covering during this F5 DNS training. Is that clear now? Yes, it's clear. ठीक है, ओके। सो श्रीनिवास, आपको क्लैरिटी मिल गई विच ऑल टॉपिक्स यू वुड बी कवरिंग। और ये हमारा अपना कंटेंट नहीं है, दिस इज द कंटेंट प्रोवाइडेड बाय द F5 फॉर दिस ट्रेनिंग, ठीक है। Fine, fine. Can you share this PDF? I'm not sure if I can share it with you. I mean, I cannot share it with you. You can ask Saurabh Rawat or Mr. Sugandh Kansal. Okay. They will get this uploaded to your portal. Fine, fine. So that's that. Okay, अब मैं बात कर लेता हूँ लैब की आप लोगों के साथ में, राइट। क्योंकि दिस इज ऑल्सो वन थिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो ये लैब है हमारी, ठीक है, F5 DNS की। और इसको अगर आप थोड़ा सा रीड करोगे अच्छे से, मतलब थोड़ा सा टाइम लगा के रीड करोगे, करा देता हूँ इनफैक्ट, क्योंकि आज तो मैं इसमें कुछ करा नहीं पाऊंगा आपको। लैब का इस लैब का एक्सेस नहीं लूंगा, दूसरे लैब का एक्सेस लूंगा। बट अगर आप इसको ध्यान से समझोगे ये लैब को, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये डीएनएस के लिए ही बनी है। ऑब्वियसली एलटीएम के प्रैक्टिकल्स भी कर सकते हो आप इसमें, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, राइट। एलटीएम भी आप डिप्लॉय कर सकते हो और साथ में आप डीएनएस भी इसमें चला सकते हो, ओके। सो इफ आई से कि ये देखो, यहाँ पे बेसिकली यू हैव गॉट मल्टीपल डेटा सेंटर्स। तो एक डीसीए है आपके पास, दिस इज द वन डीसी, ठीक है। एंड देन वी हैव गॉट अनदर डीसी, दिस इज DC2। तो हमारे पास दो डेटा सेंटर्स हो गए, करेक्ट। और यही तो चाहिए था हमें। और बैकएंड में एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन रन हो रही होगी वो दोनों डेटा सेंटर में रन हो रही होगी, राइट। और एक चीज और आप यहाँ पे नोटिस करोगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग डेटा सेंटर्स हैं, तो आप देखो ये जो इंटरनल सबनेट है हमारा, वो दोनों डेटा सेंटर में मैंने कॉमन पिक कर लिया। इनफैक्ट राउटर और बिग आईपी के बीच में जो सबनेट है 100.0/24, वो भी कॉमन है। और इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन, फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आप अल्टीमेटली नेट आईपी एड्रेस, मतलब जो पब्लिक आईपी पूल है ना आपका, जो वर्चुअल सर्वर के लिए पब्लिक आईपी पूल है, आप उसको यूज करके एक्सेस करोगे अपने एप्लीकेशंस। तो इंटरनली क्या प्राइवेट आईपीज हैं क्या नहीं है, वुड इट रियली मैटर फॉर यू? ऑब्वियसली नो, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली जो आप एंड यूजर को एक्सेस दोगे अपने एप्लीकेशंस का, वो यूजिंग पब्लिक आईपी दोगे। तो पब्लिक पूल डिफरेंट है, यूनिक है दोनों में। तो ऊपर लिया मैंने 5550/24 और नीचे लिया 6660/24, अगर आप देखोगे ध्यान से। तो फिर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एक डीएनएस वाला सेक्शन भी है जहां पे आपके डीएनएस सर्वर्स इंस्टॉल्ड है। आइडियली ये किसी एक डेटा सेंटर में होगा या दोनों में एग्जिस्ट करेगा। जैसे मैंने कहा ना, सिंक ओनली ग्रुप बना देते हैं, तो बिग आईपी डीएनएस आपका प्राइमरी डीसी में भी रहेगा और डीआरडीसी में भी रहेगा, और सिंक ओनली ग्रुप में डाल के उसको दैट्स इट, बस उतना करके छोड़ दोगे। पॉइंट ये है मेरा कि ये जो बिग आईपी डीएनएस है यहाँ पे मैंने अलग रखा है। अलग इसलिए रखा है जिससे कि आपको समझ में आए ये चीजें कि हाँ, F5 डीएनएस पे आपको F5 LTM को ऐड कराना पड़ता है वगैरह वगैरह, इसलिए इसको अलग रखा है। नहीं तो ये जो सेक्शन है ये दोनों डेटा सेंटर में आपको दिखने वाला है, दोनों में विजिबल होगा। बट यहाँ पे ये सेक्शन मैंने अलग रखा और बैकएंड में आपके डीएनएस सर्वर्स को रखा है, और ये विंडोज डीएनएस सर्वर्स है।
तो आप देखोगे पहले अगर आप डायरेक्टली एक्सेस करना चाहोगे अपने विंडोज डीएनएस सर्वर्स को, वो आप कर सकते हो। उसके बाद हम इसको एज ए प्रॉक्सी यूज करना स्टार्ट करेंगे F5 डीएनएस को। तो आप पहले तो सीखोगे कि कैसे हम अपने डीएनएस प्रोसेस को या डीएनएस जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है उसको कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं बाय इनेबलिंग कैशिंग, या फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जोन ट्रांसफर का यहाँ पे। और उसके बाद तो फिर मैं आपको इंटेलिजेंट डीएनएस रेजोल्यूशन कराऊंगा ही इसके ऊपर, जिसमें कि आप ये एलटीएम्स को डायरेक्टली ऐड कराओगे यहाँ पे। फिर जो एप्लीकेशंस यहाँ पे आप होस्ट करोगे उसके लिए यहाँ पे आप वाइड आईपी क्रिएट करोगे, मतलब होस्ट एंट्री क्रिएट होगी डायरेक्टली बिग आईपी डीएनएस में। सो उस केस में आप इसको एज ए डीएनएस यूटिलाइज करने वाले हो, एज ए डीएनएस सर्वर। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, बिग आईपी डीएनएस के लिए एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं, जैसे वाइड आईपी तो एक टर्मिनोलॉजी हो गई आपकी, बट एक और टर्मिनोलॉजी होगी यहाँ पे जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं बेसिकली लिसनर, राइट। लिसनर बोलते हैं। और इसको भी आप कंपेयर करोगे अपने वर्चुअल सर्वर से। जैसे एलटीएम में अगर इफ यू डू नॉट क्रिएट द वर्चुअल सर्वर, जस्ट इमेजिन दैट यू नेवर क्रिएटेड ए वर्चुअल सर्वर ऑन एलटीएम, तो क्या एलटीएम डेटा को रिसीव करके प्रोसेस करेगा? बोलिए। इफ यू हैव नॉट क्रिएटेड एनी virtual No, server, it will so not. will it be possible for LTM to receive your data, to accept your data and to process it? Of course no. और ये भी देखा होगा कि F5 LTM का जो डिफॉल्ट, या F5 बिग आईपी की अगर मैं बात करूं, बिग आईपी का जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो फायरवॉल वाला होता है, ऑल डिनाइड, है ना भाई। अगर ट्रैफिक कहीं मैच करा के उसको प्रोसेस नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट ड्रॉप ही करने वाला है ना, फायरवॉल की तरह। तो जब आप वर्चुअल सर्वर क्रिएट करते हो, इफ डेस्टिनेशन आईपी ऑफ द पैकेट्स आर मैचिंग विद द वर्चुअल सर्वर आईपी, तो वर्चुअल सर्वर उसको प्रोसेस कर सकता है, राइट। इन सिमिलर वे जब एक डीएनएस रिक्वेस्ट आपके बिग आईपी डीएनएस को हिट करेगी, तो यहाँ पे भी वैसे ही कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं कि जब आप एक F5 बिग आईपी डीएनएस आप इंप्लीमेंट करोगे, तो इसके पास कोई डीएनएस रिक्वेस्ट आएगी। जब इसके पास डीएनएस रिक्वेस्ट आएगी, ये प्रोसेस करेगा उस डीएनएस रिक्वेस्ट को कि नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने लिसनर कॉन्फ़िगर किया है कि नहीं किया। तो एक लिसनर कॉन्फ़िगर होता है बिग आईपी डीएनएस पे, और वो लिसनर जो आईपी एड्रेस रहेगा ना, वो ये जो आपके लेन यूजर मशीन्स हैं, वो डीएनएस सर्वर क्या रहेगा उनके लिए, बताएंगे आप? वो लिसनर। सो इफ यू आर कॉन्फ़िगरिंग योर F5 बिग आईपी डीएनएस एज ए डीएनएस सर्वर फॉर योर लेन यूजर्स, तो उस केस में जो आपके F5 बिग आईपी डीएनएस सर्वर का जो लिसनर आईपी एड्रेस होगा, लिसनर जैसे वर्चुअल सर्वर बनता है एलटीएम पे, वैसे बिग आईपी डीएनएस में क्या बनेगा? लिसनर। वो लिसनर का आईपी एड्रेस यहाँ पे एज ए सर्वर आपको यूज करना होगा अपने क्लाइंट मशीन्स के ऊपर। तो इसको समझ में आएगा कि अच्छा, ये तो लेट्स से आपने एक लिसनर बनाया और इसका पब्लिक आईपी रखना आप, है ना, पब्लिक ही रखोगे तभी तो इंटरनेट पे वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और अगर इंटरनल है आपका तो फिर प्राइवेट आईपी आप यूज कर सकते हो, राइट। फिलहाल पब्लिक रखा आपने, तो यहाँ पे जब आप वो पब्लिक आईपी एड्रेस ऐसे डीएनएस सर्वर यूज करोगे, तो जो भी डीएनएस रिक्वेस्ट जाएगी वो यहाँ पे आएगी फिर इस लिसनर के पास, और फिर ये लिसनर उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करेगा तो फिर जैसे जब आप वर्चुअल सर्वर क्रिएट करते हो, तो वर्चुअल सर्वर से जब ट्रैफिक हिट करता है एलटीएम के ऊपर, तो फिर वो देखता है कौन सा पूल है, कौन सा मेंबर है, ये वगैरह वगैरह, कौन सा एल्गोरिदम है, कोई पॉलिसी तो नहीं है, कोई आई रूल तो नहीं है, मतलब प्रोसेस करेगा और उसके बाद डिसीजन लेगा, राइट। सेम यहाँ पे है। लिसनर को हिट करोगे आप, और उसके बाद फिर ये देखता है कि इसको करना क्या है। पहले देखेगा वाइड आईपी की वाइड आईपी है या नहीं है इस रिक्वेस्ट के लिए। अगर वाइड आईपी डेटाबेस में नहीं मिला उसको कुछ, तो उसके बाद ये देखेगा फिर, यार मेरे को जोन ट्रांसफर देख लेता हूँ, जोन एक्सप्रेस। अब जोन एक्सप्रेस में भी नहीं मिला तो फिर देखेगा कैश में भी नहीं मिला तो देखेगा अच्छा, इस लिसनर में कोई पूल एसोसिएटेड है क्या। अगर पूल एसोसिएटेड है तो उसके बीच में लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम क्या है, और उसके बेसिस पे फिर ये लोड बैलेंस कर देगा रिक्वेस्ट को, डीएनएस रिक्वेस्ट को बैकएंड सर्वर्स के बीच में। अब आप कहोगे सर यार, ये बिग आईपी डीएनएस को सिर्फ डीएनएस रिक्वेस्ट को लोड बैलेंस करने के लिए आप यूज कर रहे हो, ये काम तो एलटीएम भी कर देता, फिर यहाँ क्यों लगाया है डीएनएस? भाई अगर लोड बैलेंसिंग ही करानी है, मान के चलो मेरे पास दो बैकएंड माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर्स हैं, और उन दोनों के बीच में इफ यू वांट टू परफॉर्म लोड बैलेंसिंग फॉर ऑल द इनकमिंग डीएनएस रिक्वेस्ट, की डीएनएस रिक्वेस्ट किसको हिट कर रही है? बिग आईपी डीएनएस को। और ये बिग आईपी डीएनएस लोड बैलेंस कर रहा है अमंग दीज टू बैकएंड डीएनएस सर्वर्स। तो अगर यही काम कराना था तो फिर एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रहे हो? वो ये काम तो एलटीएम से भी हो जाता। डू यू एग्री और नॉट? अरे अगर लोड बैलेंसिंग ही करानी होती
So can't we do that using LTM? Yes, yeah. Obviously, we can create a virtual server on LTM and then we can add these backend servers as a pool member, right? And then we Right. could associate that pool to that virtual server. तो आपका load balancing तो LTM भी कर देगा. That is not an issue. But जो इसके पास वो intelligent नेम रेजोल्यूशन जो इसके पास जो फीचर्स है वो कहां से लाओगे? वो LTM में पॉसिबल नहीं है. करेक्ट? Fine. हाँ, जैसे वाइड आईपी क्रिएट करना या फिर अगर हम बात करें डीएनएस सर्वर्स के लिए मतलब जो मैंने लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम्स बताई थी, ग्लोबल अवेलेबिलिटी या फिर जियो लोकेशन बेस्ड लोड बैलेंसिंग, जिसको कि आप टोपोलॉजी बेस्ड लोड बैलेंसिंग बोल देते हो. सो ऑल दोस फीचर्स विल नॉट बी सपोर्टेड बाय द बिग आईपी एलटीएम इफ यू आर यूजिंग बिग आईपी एलटीएम एज ए लोड बैलेंसर फॉर दिस डीएनएस सर्विस. तो ये प्रॉब्लम आएगी एलटीएम के साथ में. नहीं कर सकते, वो सारे फीचर नहीं है एलटीएम में जो डीएनएस के अंदर, और तभी तो डीएनएस मॉड्यूल अलग से लॉन्च किया F5 ने. अगर वही सारे फीचर्स एलटीएम में होते तो फिर जस्ट इमेजिन कि F5 एक अलग से मॉड्यूल क्यों निकालेगा डीएनएस के लिए. राइट? अलग से मॉड्यूल निकालने का मीनिंग है कि इट हैज गॉट लॉट मेनी फीचर्स, राइट, ऑब्वियसली विच आर नॉट सपोर्टेड इन एलटीएम. और वैसे भी मैंने बताया आपको एलटीएम का मीनिंग क्या होता है, लोकल ट्रैफिक मैनेजर. और डीएनएस को पहले क्या बोलते थे? जीटीएम, ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर. तो लोकल ट्रैफिक मैनेजर और ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर में मेजर डिफरेंस क्या रहेगा कि लोकल ट्रैफिक मैनेजर इज गोइंग टू परफॉर्म लोड शेयरिंग, लोड बैलेंसिंग लोकली विद इन ए डेटा सेंटर, राइट, आइडियली, मतलब आप ऐसे बोलोगे. और जो जीटीएम होता है, ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर, दैट डज लोड बैलेंसिंग ग्लोबली. जैसे टोपोलॉजी के बेसिस पे लोड बैलेंसिंग करा सकते हो आप, राइट, या आप किसी एक डीसी को प्राइमरी डीसी, बाकी को डीआरडीसी ऐसे बना के आप यूज कर सकते हो, लाइक दैट. करेक्ट? समझ आया? अच्छा उर्शाल, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, सो जस्ट टू इन्फॉर्म यू, I've just got started this big IP DNS introduction here, right? तो जो LTM का वो जो दो टॉपिक थे ना हमारे, दो ही टॉपिक्स बचे हुए थे ना एलटीएम में, एक आईरूल था और एक पॉलिसी था, राइट? डिस्कस तो कर लिया था पिछले क्लास में भी, मतलब अगर आप देखोगे तो आईरूल को यूज कर लिया था हमने. करेक्ट. यूआर जो HTTP टू HTTP रिडायरेक्शन था, सेम मैंने पॉलिसी को यूज कर लिया था. तो आपको ये तो पता है कि हाँ आईरूल और पॉलिसी यूज कैसे करना है, बट उसको थोड़ा सा और मेरे को एलाबोरेट करना था. ओके. तो उसको एलाबोरेट करने के लिए मैं डीएनएस का ही यूज करूंगा. तो अब डीएनएस स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, तो इसी में मैं आपको वो करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी आईरूल होते हैं आपके, ठीक है? तो इसी के साथ करा दूंगा. एनी क्वेश्चंस? नो. ठीक है, ओके. तो ये चीजें हैं सर. अब ये टोपोलॉजी को मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है? तो इस टोपोलॉजी में लाइक वी हैव गॉट टू सेपरेट डेटा सेंटर्स. अगर आप ध्यान से देखोगे DC1 एंड DC2, दैट्स व्हाट वी हैव. फिर उनके आईपी एड्रेसेस भी आप देख लो. DC1 में जो पब्लिक आईपी पूल है वो है 5550/24, और यहाँ पे है DC2 में. फिर एक पब्लिक आईपी पूल हमने बिग आईपी डीएनएस के लिए भी लिया है. और ये सभी जो डेटा सेंटर्स हैं जैसे DC1 या DC2, ये दोनों इंटरनेट से कनेक्टेड है. इनफैक्ट आपका F5 DNS भी इंटरनेट से कनेक्ट करके रखा है. ये F5 DNS के पीछे बैकएंड में हमने ये दो विंडोज सर्वर भी रखे हैं, जिनको हमें एज ए DNS सर्वर कॉन्फ़िगर करना होगा, और DNS सर्वर की तरह ये एक्ट करेंगे यहाँ पे. तो देखेंगे कि किस तरीके से वी कैन लेवरेज द बिग आईपी डीएनएस टू गेट द सर्विसेज फ्रॉम दीज बैकएंड डीएनएस सर्वर्स, ठीक है? उसके बाद फिर जब इंटेलिजेंट डीएनएस रेजोल्यूशन आप परफॉर्म करोगे, तो वो टाइम पे ऑन दिस बिग आईपी डीएनएस यू वुड बी एडिंग योर एलटीएम्स एज ए सर्वर, और उसके बाद आप यहाँ पे वो वाइड आईपी और वो सब क्रिएट करना सीखोगे. करेक्ट? Any questions so far? Yeah, just one question. G. The topology which is on top right, so that big IP will be configured as DNS, and in DC1 and DC2, in top left, those, in top right, left, this one. Right. So this is DNS server, and True. in DC1 and DC2, those two big IPs are LTMs, right? Correct. This is LTM. Okay. This is also LTM. Fine. So don't we have another topology with two DNS servers in two different data centers? No, we don't have that. But
we can implement like sync only group using this big Okay. IP DNS, and then we can also enable the DNS module on one of the LTM, and then we can do that. Fine. As I told, DNS के केस में हम कभी भी failover configure नहीं करते हैं. We only configure sync only groups. और सिंक ओनली ग्रुप जब आप क्रिएट करोगे तो उसका जो पर्पस होगा वो होगा कि कॉन्फ़िगरेशन सिंक में रहे. दैट्स ऑल. राइट. फाइन. एलटीएम के लिए फेल ओवर कॉन्फ़िगर करते हैं हम हमेशा. फाइन सर, थैंक यू. ऑल राइट, सो दैट्स दैट. अब इसमें मुझे देखना पड़ेगा आपका कि इसके अंदर मुझे ये देखना पड़ेगा आप लोगों के लिए कि यहाँ पे एक्चुअली क्या है, अभी इसमें किसी भी F5 बिग आईपी डीएनएस को मैंने अभी तक एक्टिवेट किया नहीं है. तो वो एक्टिवेशन का काम तो मैं कल करूंगा. तब तक मैं आपको कुछ और चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको दूसरे टोपोलॉजी में करके दिखा देता हूँ. ठीक है, जो कि एलटीएम की टोपोलॉजी है मेरी. सो इफ आई ओपन अप दैट टोपोलॉजी, द एलटीएम टोपोलॉजी, तो जो ऑलरेडी जिन लोगों ने ज्वाइन करके रखा हुआ था इस बैच को, तो दे आर प्रेटी मच फैमिलियर विद दिस टोपोलॉजी. ठीक है, तो ये एलटीएम की टोपोलॉजी है जिसमें हमने एचए के अंदर बिग आईपी 1 एंड 2 को कॉन्फ़िगर किया हुआ है. अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूं तो आप देखोगे अभी भी वो एचए में ही स्टार्ट होंगे. तो बिग आईपी 1 को हमने प्राइमरी बिग आईपी बना के रखा है एचए ग्रुप के अंदर, और सेकेंडरी है हमारा बिग आईपी 2. तो एक्टिव होना चाहिए बिग आईपी 1 को और स्टैंड बाय होना चाहिए बिग आईपी 2 को. यही कॉन्फ़िगर किया था ना विशाल, वुरशाल एंड ग्लेन प्रीवियसली हमने. आई मीन दिस इज व्हाट वी हैव कॉन्फ़िगर्ड. तो Yeah, मैंने that's इसी right. का एक्सेस लिया है. राइट, और इसका एक्सेस लेने के बाद मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाऊंगा, जैसे इनिशियल सेटअप एंड ऑल. वो मैं करके दिखा देता हूँ अभी. ठीक है, वैसे एलटीएम वालों के लिए तो ये रिवीजन होगा, बट दैट्स ओके. जैसे बिग आईपी 2 है तो मैं इसको रीसेट करके और दोबारा कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा. तो एचए तो ब्रेक हो जाएगा, बट आई डोंट केयर अबाउट दैट. ठीक है, पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ एचए बना हुआ है. तो बिग आईपी 1 इज एक्टिव एंड बिग आईपी 2 इज स्टैंड बाय. दे शुड बूट अप लाइक दैट, राइट. और उसके बाद फिर मैं बिग आईपी 2 को रीसेट कर दूंगा. तो यू वुड गेट टू नो कि हाउ डू वी रियली परफॉर्म दैट रीसेट ऑफ द बिग आईपी, है ना. तो आप देखोगे कि किस तरीके से बिग आईपी को हम रीसेट करने वाले हैं. और जब हम रीसेट करते हैं तो क्या क्या चीजें ये परसिस्ट करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज यू शुड बी अवेयर. एलटीएम में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट यहाँ पे अब आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी. राइट, हाँ, तो पहले बूट होने दो इनको, और बूट होने के बाद में हम इनका एक्सेस लेंगे. तो एक तो है 30.45 और एक है 46. एक्सेप्ट रिस्क एंड कंटिन्यू. अभी इनका जो एप्लीकेशन सर्विसेज हैं वो स्टार्ट हुई नहीं है, देखो, है ना. बता रहा है कि स्टार्टिंग सर्विसेज एंड ऑल, ये बता रहा है. तो बिग आईपी 2 पे भी ऐसे ही मिलने वाला है आपको. तो बिग आईपी 1 और बिग आईपी 2 दो दो बिग आईपीज हैं. तो जैसे ही एप्लीकेशन सर्विसेज स्टार्ट होंगी दोनों की, तो आपको दोनों का GUI एक्सेस मिल जाएगा. जब तक एप्लीकेशन सर्विसेज स्टार्ट नहीं होगी तब तक आपको GUI एक्सेस आपके F5 लोड बैलेंसर्स का नहीं मिलेगा. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. मिल गया ना. अभी इनऑपरेटिव है, और यही रीजन है कि इनऑपरेटिव की वजह से ही, इनऑपरेटिव मोड की वजह से ही ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है. एक सेकेंड होल्ड करना प्लीज. हाँ, so you see now it says peer time out of sync disconnected. That's okay. I mean, at least I should have the GUI access to it.
ठीक है, ये है। लॉगिन भी करके देख सकते हो वैसे, दैट शुड नॉट बी एन इश्यू। ये देखो अभी आपको एक्टिव स्टैंड बाय में ही मिलने वाला है, बट डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है, दैट्स ओके। ये हो सकता है एनटीपी का कुछ इश्यू हो, इस वजह से आपको ऑफलाइन भी, ओके ऑफलाइन है अभी, इस वजह से ये आपको डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है। जैसे ऑनलाइन आएगा तो ये ऑब्वियसली एक्टिव मेरा LTM1 ही रहने वाला है, LTM2 मेरा स्टैंड बाय रहेगा, बट क्योंकि ये ऑफलाइन है अभी इसका स्टेट, ठीक है, तो इसलिए इट्स नॉट वर्किंग। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम इट शुड गेट फिक्स्ड ऑटोमेटिकली, बट मुझे वो नहीं कराना था, मुझे कराना भी नहीं LTM की चीजें आप लोगों को, राइट। मैं अब आपको रीसेट करके दिखाऊंगा बॉक्स को, ठीक है। जैसे बिग IP2 है, राइट, मैंने इसका CL एक्सेस लिया हुआ है, यू नो इट वेरी वेल। यहां से ये CLI इसका एक्सेस लिया हुआ है, अभी इन ऑपरेटिव आ रहा है, दैट्स ओके, छोड़ो उसको, हमें कोई लेना देना नहीं है। दिस इज कॉल्ड बैश मोड, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बैश मोड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, बैश मोड। अब TMSH में आप टीमोस में चले जाएंगे, राइट, TMSH कमांड से आप टीमोस में जाएंगे, एंड देन व्हाट आई कैन डू, आई कैन रीसेट द एंटायर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड होती है लोड, अब देखना इसको सिस्टम डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन मोड में कैसे लेकर के जाओगे, राइट, लोड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डिफॉल्ट, राइट। तो लोड सिस कॉन्फ़िग डिफॉल्ट, ये कमांड आप डालोगे यहाँ पे, इससे आप फैक्ट्री डिफॉल्ट मोड में जाते हो, क्योंकि एक डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है यहाँ पे पहले से, आप वो लोड कर रहे हैं यहाँ पे। यू गेट माई पॉइंट, ग्लेन एंड रोहित एंड श्रीनिवास, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी पुट एनी बिग IP इनटू फैक्ट्री डिफॉल्ट मोड, करेक्ट। बट इसमें ध्यान रखना कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये डिलीट नहीं करेगा या चेंज नहीं करेगा, जैसे मैनेजमेंट इंटरफेस की सेटिंग्स या कॉन्फ़िगरेशन। आपने अगर मैनेजमेंट इंटरफेस पे कोई कॉन्फ़िगरेशन की हुई है ना पहले से, तो उसको भले ही आपने ये फैक्ट्री डिफॉल्ट मोड में डाला है, राइट, स्टिल ऑल योर मैनेजमेंट इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन will remain as it is, right? It is not going to affect your management interface configuration. That's point number 1, ठीक है। इसमें अब जो पॉइंट नंबर 2 है, राइट, वो ये है कि जो लाइसेंस है आपका, दैट वुड ऑल्सो रिमेन सेम। मतलब अगर आपने लाइसेंस इंस्टॉल करके रखा है ना, तो वो एज इट इज रहने वाला है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ शो कमॉन सिस लाइसेंस, ठीक है, तो ये एज इट इज रहने वाला है, ठीक है, इसको इसको डिलीट नहीं करेगा ये, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ लोड सिस कॉन्फ़िग डिफॉल्ट, जो मैं कर रहा हूँ, अब ये देखो ये बोल रहा है कि आर यू श्योर, तो आपको यस करना है। आप देखोगे कि आइडियली अगर आप किसी फैक्ट्री डिफॉल्ट मोड में डालते हो किसी दूसरे डब्बे को, ठीक है, या किसी दूसरे वेंडर के डब्बे को, तो आपका SSH एक्सेस चला जाएगा। मैंने SSH के थ्रू एक्सेस किया हुआ है यूजिंग मैनेजमेंट इंटरफेस, बट इसका मैनेजमेंट एक्सेस आपके पास रहेगा। SSH के थ्रू आप इसको एक्सेस करते रहोगे, देखो गया नहीं है एक्सेस, और जाना भी नहीं है। समझ रहे हैं आप, राइट। So this is how you put your box into default configuration or factory default mode. बट ये हमें ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी डब्बे को फैक्ट्री डिफॉल्ट मोड में डालते हो, तो वो यू नो तो ये बॉक्स फिर इट डज नॉट लूज इट्स मैनेजमेंट इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज इट डज नॉट लूज इट्स लाइसेंस, सो इट वुड रिमेन in within your big IP, right? इनफैक्ट दिखा भी दिया इसने एक्सपायरिंग पासवर्ड्स एंड ऑल, बट ठीक है, मेरे पास तो एक्सेस ऑलरेडी है ना। पासवर्ड एक्सपायर कर देता है ना ये डिफॉल्ट स्टेट में। जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम जब हम बूट कराते हैं किसी बिग IP को, मान के चलो आपके पास एक नया बिग IP आया, आपने उसको बूट कराया, तो बाय डिफॉल्ट जो रूट क्रेडेंशियल्स होते हैं वो रूट डिफॉल्ट रहते हैं, रूट ROOT, एंड देन पासवर्ड रहता है डिफॉल्ट DEFAULT, राइट। और एडमिन का रहता है एडमिन एडमिन, राइट। पर देन वो पासवर्ड एक्सपायर्ड रहते हैं पहले से, और आपको वो चेंज करने पड़ते हैं फिर, राइट। अब क्योंकि मैं तो ऑलरेडी लॉग्ड इन हूं यहाँ पे, इस केस में मैंने तो ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है ना यहाँ पे,
ठीक है, अभी फिर से इनऑपरेटिव आ रहा है, बट दैट्स ओके। अभी सूनर लेटर मतलब थोड़े टाइम में ये एक्टिव हो जाएगा। बट अभी अब इस बॉक्स के ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने लॉग आउट भी कर दिया होगा मुझे। हाँ, अभी तो ये इट इज वेटिंग फॉर एस्टेब्लिशिंग दैट कनेक्शन विद द डिवाइस। बट दिस इज हाउ यू रीसेट द बॉक्स, राइट। अब क्योंकि रीसेट किया तो अब सेटअप करना भी सीखेंगे, क्योंकि वो सेटिंग अप बिग आईपी है ना आपके यहाँ टॉपिक, इसलिए मैंने ये कराया। तो सेटिंग अप बिग आईपी इज ए टॉपिक ऑफ डीएनएस, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ आपको। तो आने दो इसको, एक बार एक्टिव होने दो, एंड देन आई विल स्टार्ट द इनिशियल सेटअप यूजिंग गुई। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, राइट। ये बताओ आप, जिन लोगों को, क्योंकि जो डीएनएस कर रहे हैं उनको एलटीएम तो आता है, ऐसा तो मैं एज्यूम कर ही सकता हूँ ना। और जिन्होंने यहीं यहीं पे एलटीएम कवर किया उनको तो मतलब वो भी, दे शुड बी एबल टू गिव द आंसर। डिफॉल्ट आईपी एड्रेस क्या होता है किसी बिग आईपी का? हाँ जी, Last octet will be .245. एग्जैक्टली, 192.168.1.245, right? So that's the default IP address of any big IP that you get on it, right? जब आप एक नया big IP परचेज करते हो तो डिफॉल्ट IP एड्रेस होता है वो मैनेजमेंट इंटरफेस के ऊपर। बट एट सेम टाइम your management interface is pre-configured to obtain an IP address from the DHCP server as well, okay? So it can also obtain an IP address from the DHCP if there is a DHCP pool configured in your VLAN. Management VLAN में if DHCP services are running, then your big IP can also obtain an IP address from the DHCP server. Console board भी होता है आपके big IP पे, तो console से आप you can also take the first time console, right? तो वो भी आप ले सकते हो. So that feature is also available, right? अगर आप फिजिकल बॉक्सेस की बात करोगे, अब कभी कभी जो मैनेजमेंट आईपी है ना वो 192.168.1.244 या 246, आई कैंट रियली रिकॉल इट, या तो 244 होता है, 246 ये होता है आपके चेसीज के केस में। आपके पास अगर चेसी है उस केस पे। अच्छा, अभी ये कह रहा है रिबूट इज रिक्वायर्ड, तो मैं इसको एक बार ना रिबूट कर देता हूं यहाँ पे, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको खाली शट करके ऐसे स्टॉप किया और फिर इसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था चेसी का जो डिफॉल्ट आईपी एड्रेस होता है। चेसी का डिफॉल्ट आईपी एड्रेस वो बिग आईपी जो अप्लायंसेस आते हैं उनसे अलग होता है। जैसे अप्लायंसेस में तो 1.245 हो गया, तो जो चेसी का डिफॉल्ट आईपी एड्रेस रहेगा वो या तो 1.244 होता है या फिर 246 होता है। आई कैंट रियली रिकॉल इट, बट यही कुछ होता है, आइदर 244 और 246, वो आपको देखना पड़ेगा एक बार। बट चेसी का भी डिफॉल्ट आईपी एड्रेस आता है। सो दैट्स समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर, क्योंकि कई बार ये ऐसे फालतू के क्वेश्चंस मैं बोलता हूं बट ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। वैसे इनका कोई ये बेसलेस क्वेश्चंस हैं। रीजन क्योंकि ऐसा बहुत रेयरली होगा कि आप डिफॉल्ट आईपीस के साथ उनको एक्सेस करोगे। हाँ, कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट मैक्सिमम केसेस में नहीं करते हैं। कंसोल से एक्सेस करके मैनेजमेंट आईपी कॉन्फ़िगर करके देन वी टेक द मैनेजमेंट एक्सेस ऑफ द बॉक्सेस। दिस इज हाउ वी डू, ठीक है, बट दैट्स ओके। अभी मैंने इसको रिबूट कर दिया है इस बिग आईपी 2 को, राइट। तो जो यहाँ पे ये मैंने फेलोवर कॉन्फ़िगर करके रखा था ना आपका, सिंक फेलोवर, सिंक प्लस फेलोवर दोनों, अगर आप देखोगे यहाँ पे LTM1 की कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये डिवाइस ग्रुप और डिवाइस ग्रुप में जाओगे तो यहाँ पे दो दो डिवाइसेस थी मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक विद इंक्रीमेंटल सिंक और सिंक फेलोवर था, ये देखोगे ना, सिंक फेलोवर। तो सिंक फेलोवर कॉन्फ़िगर नहीं करोगे आप डीएनएस के केस में। डीएनएस के केस में आप सिर्फ सिंक ओनली करोगे, सिर्फ सिंक, नॉट सिंक फेलोवर, ओके। वो आप तब करोगे जब आप बिग आईपी डीएनएस पे मैं आपको कराऊंगा, तो वो टाइम पे कराऊंगा। अभी तो कह रहा है कि स्टार्टिंग वेब सर्वर, क्योंकि रिबूट किया ना मैंने इसको। बट हाँ, ये देखो CLI से एक्सेस मिल गया मेरे को, कंसोल एक्सेस है ये SSH एक्सेस नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट रियली श्योर दैट व्हाट आईपी एड्रेस इट हैज पिक्ड अप। वैसे मैनेजमेंट का तो मुझे पता ही है, क्योंकि डिलीट नहीं हुआ अभी तो फिलहाल, आई एम अवेयर ऑफ। बट अगर एक नया बॉक्स होगा तो यू डोंट नो दैट व्हाट मैनेजमेंट आईपी एड्रेस इट हैज पिक्ड अप, राइट। देख सकते हो, निकाल सकते हो काफी चीजें। स्विच की मैक एड्रेस टेबल निकालो, वहां से मैक निकालो अपने F5 का, वो इंटरफेस का जिसपे F5 कनेक्टेड है, फिर उस मैक एड्रेस के अगेंस्ट DHCP पूल को सर्च करो, निकाल सकते हो। देयर आर मेनी वेज, राइट, to identify in case I mean to identify the IP addresses.
फिर उस VLAN में आप कई बार ब्रॉडकास्ट को पिंग करा के रिप्लाई देख सकते हो किस किस से आया। वो देर आई मीन यू हैव गॉट सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, बट क्यों करें ऐसा, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाए इसको हम? सिंपलिस्टिक वे में इसको आप सिंपली कंसोल से एक्सेस लोगे फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, ये कंसोल एक्सेस है इसका, राइट? तो कंसोल एक्सेस में बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम रहेगा दैट इज रूट, ठीक है। डिफॉल्ट पासवर्ड जो रहेगा दैट इज डिफॉल्ट, DEFAULT, वो डालोगे। क्या बोल रहा है ये सर? ये फर्स्ट टाइम सेटअप है, ये फर्स्ट टाइम सेटअप है। इसने बोला कि बॉस आपका पासवर्ड जो है वो चेंज होना चाहिए इमीडिएटली। तो अभी जो करंट पासवर्ड है वो डालो, DEFAULT। फिर बोल रहा है कि नया पासवर्ड डालिए, तो मैं नया पासवर्ड डाल रहा हूं अब, राइट? सो आई एम टाइपिंग नाउ, रीटाइप द न्यू पासवर्ड। वो किया मैंने, अब पासवर्ड रीसेट हो जाना चाहिए, हो गया। बट मैंने तो सिर्फ रूट के लिए किया था ना यहाँ पे, क्योंकि CLI में जब आप लॉगिन करोगे तो रूट से करोगे, राइट? बट यहाँ पे अगर आप ये इसका मैसेज रीड करोगे जो इसने दिया हमें CLI में, रीड करोगे एक बार, क्या बोल रहा है ये समझ आया आपको इसने क्या बोला? बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द इनिशियल सेटअप ऑफ द डिवाइस, इनिशियल सेटअप ऑफ द बिग IP, राइट? समझ आया क्या बोला इसने? It says कि whatever password you have set on the root for the root user ID, the same password has been configured for, बोलिए, the same password has been configured for, admin. yes, but it is marked as an expired, ठीक है। तो एक तो अब एडमिन का आपका डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं रह गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एडमिन एडमिन होता है, यूजर आईडी पासवर्ड, राइट? तो वो नहीं है अब जो पासवर्ड आपका रूट का है वही एडमिन का हो चुका है, इट हैज डन दैट, राइट? बट एक्सपायर्ड मार्क कर दिया है इसने। अब सिंस इट हैज मार्क दैट पासवर्ड एज एन एक्सपायर्ड, तो आप जब फर्स्ट टाइम लॉग इन करोगे ना गुई में, तो इट विल आस्क यू टू रीसेट योर पासवर्ड। चलते हैं एक बार गुई में। तो गुई में जब आप लॉग इन करोगे फर्स्ट टाइम, तो ये बोलेगा कि बॉस ये पासवर्ड तो एक्सपायर हो चुका है, राइट? तो फिर मैं उसको रीसेट कर दूंगा। देखो अब कर रहा हूं रीसेट, करंट डाला और न्यू पासवर्ड डाल के मैंने रीसेट कर दिया इसको। अब लॉग इन करो, हो गया लॉग इन। So this is the first time, that since we log in onto this big IP, post reset, right? तो पोस्ट रीसेट वी आर लॉगिंग इन वेरी फर्स्ट टाइम। तो जब आप फर्स्ट टाइम किसी बिग IP पे लॉग इन करते हो, तो उसका होस्ट नेम होता है बिग IP, आप देख सकते हो, राइट? होस्ट नेम भी बिग IP है उसका। और मैनेजमेंट IP तो खैर इस केस में चेंज हुआ नहीं था, राइट? बिकॉज वी केप्ट इट कॉमन। और जब हमने रीसेट किया तो उस टाइम पे मैंने बताया भी था आपको कि इट डज नॉट अफेक्ट योर मैनेजमेंट इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, सो दैट वाज सेम। बट हाँ, यहाँ पे सेटअप यूटिलिटी में अब आप आ गए हैं गुई में। तो आप देखोगे कि जब तक आप सेटअप यूटिलिटी कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आपका LTM मॉड्यूल भी प्रोविजन नहीं हुआ है यहाँ पे। तो क्या कुछ प्रोविजन है बाय डिफॉल्ट LTM या DNS, कुछ ऐसा? नथिंग है ना, कुछ भी नहीं है ना। तो आपको ये सेटअप यूटिलिटी कंप्लीट करना होगा, तो आप नेक्स्ट करो। अगर इसमें लाइसेंस नहीं होता ना, तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे लाइसेंस इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। फिलहाल है लाइसेंस तो दैट्स ओके, तो आप नेक्स्ट कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट कर रहा हूं यहाँ पे। अब ये जाएगा रिसोर्स प्रोविजनिंग में, और यहां पे आप बताते हो कि इसको आप ऐसे LTM यूज करोगे या फिर ऐसे DNS यूज करोगे, या फिर ऐसे दोनों LTM भी और DNS भी आप कर सकते हो। जैसे LTM तो बाय डिफॉल्ट प्रोविजन है, नीचे देखोगे तो GTM आ जाएगा, ग्लोबल ट्रैफिक। ये DNS कॉमा इसमें दिया हुआ है ना, देखो ब्रैकेट्स के अंदर DNS डाला हुआ है, तो आप इसको चेक मार्क करो, क्योंकि लाइसेंस तो है, देखो सामने दिखा रहा है कि लाइसेंस्ड है। और नॉमिनल पे ही रहने दो, तो मैंने LTM प्लस DNS दोनों को सेलेक्ट किया है यहाँ पे। अब इसके साथ में ये AVR का भी बताया था मैंने आपको, याद है, राइट? तो ये प्रोविजनिंग यहां से होगी। अच्छा, अगर आप यहाँ पे DNS को कर देते हो डेडिकेटेड, तो LTM हट जाएगा, ये देखो। तो जैसे आप DNS को डेडिकेटेड करोगे तो LTM हट जाएगा। अब DNS डेडिकेटेड का मीनिंग ये हुआ कि इस बिग IP के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब के सब इस DNS को असाइन हो जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं, इस बिग IP के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सभी DNS मॉड्यूल को असाइन हो जाएंगे, एलोकेट हो जाएंगे, राइट? बाकी ठीक है, LTM इसको सेलेक्ट करके रखो, नॉमिनल नॉमिनल, एंड देन क्लिक नेक्स्ट से ओके।
जब आप रीप्रोविजनिंग करते हो, मतलब प्रोविजनिंग में चेंजेस करते हो, तो बिग आईपी की जो सर्विसेज हैं वो रीस्टार्ट होती हैं, ये ध्यान रखना आप। तो ये जो प्रोविजनिंग, आप रीप्रोविजनिंग करते हो ना, या चेंजेस करते हो प्रोविजनिंग के अंदर, तो थोड़ा ये ध्यान से करना है प्रोडक्शन नेटवर्क में, राइट? क्योंकि आपकी सर्विसेज रीस्टार्ट होती हैं। Sir, I have one doubt about services. यस। For example, I have FI LTM running one, and I want to provision or I want to add DNS module in that. So while doing that, it will do reprovisioning, right? Again, between करेक्ट, LTM यस, and यस, यस, GTM. ऑफ कोर्स, So in that case, the LTM services will also be restarted? यस, ऑफ कोर्स। Okay, हाँ, fine, आपका उसमें आउटेज आएगा। fine, fine. हाँ। अभी ये हो गया हमारा प्रोविजनिंग वाला कंप्लीट। अब ये पूछ रहा है डिवाइस सर्टिफिकेट यहाँ पे। सो इफ यू वांट टू चेंज द डिवाइस सर्टिफिकेट, यू चेंज इट। इफ यू डोंट वांट टू चेंज द डिवाइस सर्टिफिकेट, keep it same. By default it is using self sign certificate. You can see that issuer is self, correct? Now say next. Now it will ask for the host name, and so you can put the host name and everything. So IP you can keep it same. For now I'm keeping it ltm2imerita.com. That's the, now remember that whenever you are putting the host name right, it has to be in the form of FQDN, right? Fully qualified domain name. Now remember that whether you are putting the host name for the big IP DNS or big IP LTM, because big IP is big IP, whether you are using it as a LTM or DNS, and this whole configuration that currently we are doing, it is applicable only for the big IP, not for LTM or DNS, right? So the host name concept, whether you are putting it on LTM or DNS, is going to be same, right? Now password for the root is, I'm just putting that up. And then say next. So I put on the password and the management IPs and everything. And then say finished. Now you should see LTM as well as DNS tabs at your left side. So you have LTM. Under LTM, you can make all the configurations related to LTM only. But then under DNS, now you can make all this configuration, right? So even earlier when we never provisioned the DNS, still I was getting this option. But if you expand the DNS, you would not get all these options like GSLB and everything, right? You would not get those options available. So DNS will be visible there, but you can't really make configuration under that DNS options unless you provision the DNS module. So this time we have provisioned the DNS module. हमने provision किया, अगर आपको याद हो, LTM के साथ साथ। और यही रीजन है कि मैं यहाँ पे ये GSLB और ये सब चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, स्पेशली ये GSLB, क्योंकि यही इसी में इंटेलिजेंट DNS रेजोल्यूशन होता है अंडर GSLB, राइट? तो यही सारी चीजें, डिलीवरी एक आपके पास ऑप्शन है, GSLB एक आपके पास ऑप्शन है, जोन्स है आपके पास, कैशिंग है, और फिर उसके बाद सेटिंग्स है आपके बिग आईपी DNS को लेकर के, राइट? अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? एंड दैट इज व्हाई इट डज नॉट टेक दैट मच लॉन्ग टाइम टू कवर this DNS module, right? क्योंकि उतने options नहीं है। जैसे LTM में जाओगे तो you have got lot many options, right? Then virtual server, then you have got pools, nodes, and you have got so many profiles. Although वो DNS में भी है, but अब क्योंकि आपको पता है कि यार हाँ, ये जैसे pool हो गया तो आपको पता है pool क्या होता है, right? अभी आपको पता है रूल्स क्या होते हैं यहाँ पे, ठीक है? ऐसे ही अगर आप डिलीवरी में जाओगे तो यहाँ पे प्रोफाइल्स, आपको की प्रोफाइल्स क्या होती हैं, राइट? और उसके बाद ये मॉनिटर्स। अच्छा, पूल, यहाँ पे दो पूल होते हैं, एक तो डिलीवरी के अंदर होते हैं और एक GSLB। तो आप देखोगे कि वी हैव गॉट सम ऑब्जेक्ट्स that we can create under delivery, and also there are some objects that we can create under GSLB. अब going forward मैं आपको explain करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा ये चीजें कि GSLB में क्या क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप, और आप अंडर डिलीवरी क्या क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। क्योंकि डिलीवरी के अंदर भी कुछ आपके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं और कुछ अंडर GSLB आपके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे होते हैं। Any questions? That's clear. Nice. तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कवर
करने वाले हो, और इस तरीके से आप इनिशियल सेटअप कंप्लीट करोगे अपना, राइट। अब ये भी हो गया आपका इनिशियल सेटअप, आपको पता है कि बेसिक सेटअप कैसे कंप्लीट करना है, बट आपको ये नहीं पता कि नेटवर्किंग कैसे करनी है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, आप चाहे आप नेटवर्किंग बिग आईपी एलटीएम पे करो या बिग आईपी डीएनएस पे करो, राइट, नेटवर्किंग वो सेम ही रहेगी। क्रिएटिंग वीलेंस, पुटिंग आईपीज ऑन टू वीलेंस, है ना, जो सेल्फ आईपी था वो सब सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा, या राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे एलटीएम 1 पे देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एलटीएम चला हुआ है, ये डीएनएस के ऑप्शंस आपको नहीं दिखेंगे। देखो है क्या जीएसएल भी इधर, और डिलीवरी में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक पड़ा हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि डीएनएस प्रोविजन नहीं किया आपने यहाँ पे। बट अगर नेटवर्क टैब देखोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, और अगर आप अपने डीएनएस पे जाओगे तो यहाँ पे भी नेटवर्क टैब ही मिलेगा आपको, और वो सेम ऑप्शंस हैं आपके पास। मतलब चाहे आप डीएनएस बिग आईपी डीएनएस के लिए नेटवर्किंग करा रहे हैं या फिर बिग आईपी एलटीएम के लिए, दैट has got similar things, that has got similar features, that has got same options, right? समझ आया आप लोगों को कि नहीं आया? Yes, understood. ग्रेट। तो ये सेम रहने वाला है। तो अभी जैसे डीएनएस पे आपको ये इंटरफेस लिस्ट देखनी है तो आप ऐसे देखोगे, राइट, ये मेरा डीएनएस ही है बेसिकली, अभी एलटीएम को छोड़ दो, ठीक है, ऐसा मानो कि डीएनएस है। एंड देन यू हैव गॉट द वीलेंस, राइट, तो वीलेन क्रिएट कर सकते हो, तो वही तरीका है जो हमने एलटीएम पे यूज किया था कि नेम दे दो, यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया इंटरनल वीलेन, राइट, टैग हो गया मेरा 20, इंटरफेस है मेरा 1.2, अनटैग्ड रखेंगे इसको हम, ऐड कराओ, रिपीट कर सकते हो इफ यू वांट टू क्रिएट वन मोर वीलेन। जैसे एक्सटर्नल वीलेन बोला मैंने, वीलेन 10 हो गई है, और ये 1.1 अनटैग्ड, और फिर फिनिश कर दो। तो ऐसे वीलेन क्रिएट कर सकते हैं आप, सिमिलर टू बिफोर। फिर उसके बाद सेल्फ आईपीज में जाकर के सेल्फ आईपी आप कॉन्फ़िगर करोगे, तो वो तरीका वही है जो एलटीएम में आपने यूज किया था। तो ये सब तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। फिर राउट में जाकर के आप स्टैटिक राउट ऐड कराओगे। फिर उसके अलावा भी मैंने आपको चीजें बताई थी, इफ यू रिमेंबर दैट, डायनामिक राउटिंग, पार्टीशनिंग, राइट। पार्टीशन के अलावा अगर आप देखोगे कि अगर आपको ये मल्टीपल राउटिंग टेबल्स अगर आपको रखनी है तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है आपका एक राउट डोमेन्स, तो आप राउट डोमेन्स क्रिएट कर सकते हो, तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एलटीएम में। तो वो सारी चीजें यहाँ डीएनएस में भी सेम ही रहती हैं, चाहे वो आपको एक नया राउट डोमेन क्रिएट करना हो, या स्टैटिक राउट ऐड करने हो, या आपको इनफैक्ट पैकेट फिल्टरिंग करानी हो नेटवर्क लेवल पे, इंटरफेस लेवल पे पैकेट फिल्टरिंग, लाइक जैसे हमारे पास सिस्को में एसीएल्स होती हैं, वैसे आप यहाँ पे भी आपके पास यहाँ पे भी सेम सिमिलर चीजें ही रहने वाली हैं, राइट। तो ये सब है, करेक्ट। तो आपको देखना, जिन्होंने एलटीएम सीरियसली ठीक से किया हुआ है ना, तो उनके लिए जो जीटीएम है, इट वुड बी सो इजी, लाइक ब्रेड एंड बटर की तरह रहने वाला है ये। बस आपको डीएनएस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनएस सर्विस क्या काम करती है, उसका रोल क्या होता है प्रोडक्शन में, राइट। दैट्स ऑल यू नीड टू नो ऑन टॉप ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड सो फार। उसके बाद तो देखना, ऑप्शंस तो वैसे ही हैं जैसे आपने वर्चुअल सर्वर कॉन्फ़िगर किया, पूल कॉन्फ़िगर किया, वैसी वैसी चीजें हैं। बस आपको अब यहाँ पे उनका मीनिंग डिफरेंट होगा, राइट, उनका मीनिंग डिफरेंट रहने वाला है, दैट्स ऑल। तो बताइए, एनी क्वेश्चंस सो फार फ्रॉम एनीवन? श्रीनिवास, फ्रॉम यू, रोहित, रखेजा, या फिर विशाल, या फिर उर्शाल, ग्लेन, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन? So far good, sir. नाइस। तो ठीक है, आई कीप इट लिटिल शॉर्ट फॉर टुडे, ठीक है। कल मैं आपको डीएनएस की डिप्लॉयमेंट सीधे डीएनएस एक्सप्लेन करूंगा, पहले तो पढ़ के आना थोड़ा सा आप लोग प्लीज। आप लोगों से सभी से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो मैं बता रहा था आपको, जो जैसे रूट डोमेन हो गया, रूट डोमेन पढ़ के आना क्या होता है, फिर थोड़ा सा टॉप लेवल डोमेन क्या होते हैं, सब डोमेन्स क्या होते हैं, वो थोड़ा सा देख करके आना आप लोग प्लीज पहले से, जिससे कि जब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा उन चीजों को तो आपको थोड़ा आइडिया रहे मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। वैसे मैं अपना ट्राई करूंगा पूरा 100% कि यू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, बट स्टिल थोड़ा सा देख करके आना पहले से एडवांस में, सो दैट you feel comfortable while I am giving my own explanation, ठीक है। So that's that. Very well, that how to do that, right? So load sys config default, right? Yes. So except management interface, everything, management and license, right? Everything will get resetted.
तो your configuration will set back to the factory default, so that's okay. I mean, that's what I wanted. बट यहाँ अगर आप देखोगे, राइट, तो मैंने बताया था आज आप लोगों को कि फर्स्ट आई एम गोइंग टू कवर द डीएनएस, राइट, कि व्हाट इज डी डीएनएस। और मैंने कल आपको बोला भी था कि यू गाइस गो बैक एंड देन मेक श्योर कि कल क्लास अटेंड करने से पहले थोड़ा सा डीएनएस को देख करके आना, राइट। तो वो चीजों के लिए मैंने आप लोगों को बोला था, ठीक है। अच्छा, इसमें जो मैं आपको ये ये जो बुक आपको अपलोड होगी आपके पोर्टल पे, राइट, तो उसमें पहले वही प्रॉक्सी से स्टार्ट किया हुआ है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एलटीएम सभी लोगों ने किया हुआ है पहले से, तो यू शुड बी ओके विद दैट कि प्रॉक्सी क्यों बोलते हैं, राइट, और टीमोस क्या होता है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, है ना। और बाकी इनिशियल सेटअप तो मैंने कल कराया था, आज फिर से करोगे, सो यू शुड नॉट बी हैविंग एनी इश्यूज विद दैट, ठीक है। तो इनिशियल सेटअप तो आज फिर से करोगे आप, सो दैट्स ओके। उसके बाद बात कर रहे थे कि डीएनएस, राइट, कि व्हाट इज डीएनएस, तो समझ आया कुछ? कल आपने वापस जाके घर पे थोड़ा सा रीड किया होगा डीएनएस को, कि डीएनएस कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, राइट। थोड़ा आइडिया लगा आप लोगों को कि नहीं? Yes, sir. Okay. I'm hoping everybody tried to do so, right? I mean, सभी ने ट्राई किया होगा अपने लेवल पे थोड़ा थोड़ा इसको रीड करने का। तो अगर डीएनएस की बात करोगे, ऑब्वियसली कल भी बताया था मैंने आप लोगों को कि डीएनएस का जो मेनली वर्क होता है, या जो इसका इसका जो रोल होता है, वो होता है नेम्स को आईपी में ट्रांसलेट करना। लाइक whenever we are trying to access anything, any object over an internet, right? तो ideally you access everything, all your applications by their names, है ना। अभी ऐसा नहीं होता कि आप आईपी से एक्सेस करते हो, मतलब कर सकते हो, टेक्निकली इट इज पॉसिबल टू एक्सेस ऑल ऑफ योर एप्लीकेशन यूजिंग देयर आईपीस, है ना। पॉइंट ये है कि कितने आईपीस को आप याद रखोगे। फेसबुक को अपना आईपी बताना पड़ेगा, अच्छा ये मेरा आईपी है, राइट, या गूगल को अपना आईपी बताना पड़ेगा, एंड देन आप डायरेक्टली आईपी की हेल्प से वो एप्लीकेशंस को एक्सेस करोगे। मतलब टेक्निकली इट इज पॉसिबल, बट फिजिबल नहीं है। फिजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि बीइंग ए ह्यूमन, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कीप नंबर्स रिमेम्बर, राइट। मतलब नंबर्स को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फॉर ए ह्यूमन बीइंग, राइट। बट नेम्स को हम इजीली याद रख सकते हैं, राइट। वो एंट्रीज हमारे ब्रेन में इजीली स्टक हो जाती हैं, करेक्ट। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं मैक्सिमम केसेस में, सर्वर्स का भी आप देख लो, सर्वर्स को एक्सेस करते हैं आइडियली। जैसे आप आरडीपी वगैरह लेते हो प्रोडक्शन में, आप देखोगे कि आप उनका भी आरडीपी नेम्स के थ्रू करते हो, नेम यूज करके करते हो, बिकॉज सर्वर्स को भी एक्सेस करना यूजिंग देयर नेम्स सो इजी। बट अगर आप आईपी से याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। तो आपको पता होगा डीएनएस, फिर आपको चाहिए कुछ तो चाहिए जो नेम को आईपी में रिजॉल्व करे। तो एक तो होस्ट फाइल आती है कि आप होस्ट फाइल अपडेट कर सकते हो। होस्ट फाइल में एंट्रीज क्रिएट करनी होती हैं फॉर ईच एंड एवरी नेम एंड आईपी एड्रेस। बट होस्ट फाइल के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये हर मशीन पे आपको ऐसा करना पड़ेगा, कोई सेंट्रलाइज्ड सोल्यूशन नहीं है वो, राइट। ये जो सोल्यूशन है होस्ट फाइल वाला, वो हर मशीन पे आप मैनुअली डालोगे, राइट। बट वो उतना नहीं है कि मतलब एक स्केलेबल सोल्यूशन नहीं है वो, राइट। तो इसलिए फिर इस तरह का, या फिर डीएनएस इवॉल्व हुआ, ठीक है। तो डीएनएस बेसिकली एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है, राइट। और उस सर्वर के ऊपर आप एंट्रीज क्रिएट करके रखते हो कि इस नेम के लिए ये आईपी एड्रेस होगा, राइट। इस नेम के लिए ये आईपी एड्रेस होगा। ये कहाँ पे क्रिएट करके रखते हो आप? डीएनएस सर्वर्स पे। और फिर जब एक क्लाइंट को एक नेम को आईपी में ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है, तो वो डीएनएस सर्वर को एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा कि आई नीड एन आईपी एड्रेस फॉर दिस नेम। और फिर डीएनएस सर्वर पे वो रिक्वेस्ट आएगी, डीएनएस सर्वर अपने डेटाबेस को देखेगा और डेटाबेस से उस नेम के अगेंस्ट जो आईपी एड्रेस होगा उसको निकाल के आपको प्रोवाइड करेगा। दिस इज हाउ नेम्स आर ट्रांसलेटेड इनटू एन आईपी एड्रेस।
यूजिंग डीएनएस। तो ये एक सेंट्रलाइज सोल्यूशन है। जैसे होस्ट फाइल तो हर मशीन की अपनी अपनी होती है, जैसे आप भी देखोगे आपके लैपटॉप में भी होस्ट फाइल होती है, F5 के ऊपर भी अपनी होस्ट फाइल होती है, आप उसमें भी एंट्रीज क्रिएट कर सकते हो। बट पॉइंट ये है कि जो होस्ट फाइल वाला कॉन्सेप्ट है वो एक लोकल सोल्यूशन है, राइट, लोकल टू इंडिविजुअल मशीन्स। तो हर मशीन पे वो होस्ट फाइल को अपडेट करना, मेंटेन करना इज सो डिफिकल्ट, स्केलेबल सोल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी, राइट। इसके लिए फिर डीएनएस ही आया और वही हम यूज करते हैं। तो डीएनएस में बेसिकली अगर आप देखोगे, एक तो होता है रूट डोमेन जिसको हम डॉट बोलते हैं, ये डॉट रूट डोमेन होता है। और दुनिया में कुछ लोग हैं जिनके पास रूट सर्वर्स, जो रूट सर्वर्स को मैनेज करते हैं, राइट, जो रूट सर्वर्स को मैनेज करते हैं, राइट। जैसे अगर आप देखोगे रूट सर्वर्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो रूट है, रूट इज मैनेज्ड बाय, या रूट जोन की अगर हम बात करें जो डॉट होता है, दिस इज मेनली मैनेज्ड बाय आईना। ठीक है, आईना क्या होता है? इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। आईना वैसे बहुत सारे काम करता है, राइट, राइट। तो जैसे आईपी एड्रेसेस का रिजर्वेशन हो गया, चाहे वो IPv4 है या IPv6 है, तो वो भी कौन करता है? आईना। ठीक है, तो जो आईना है खाली रूट को ही मैनेज नहीं करता, ध्यान रखना, खाली रूट को ही मैनेज नहीं कर रहा होता है। अम, उसके अलावा जो कुछ टॉप लेवल डोमेन्स है उसको भी मैनेज कर रहा होता है। ध्यान रखना, कुछ टॉप लेवल डोमेन्स को भी मैनेज कर रहा होता है आईना। अब ये आईना है कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रूट है, रूट सर्वर जो है, वो कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? वो कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? यूएस में, राइट। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ पे ये रूट डीएनएस सर्वर्स रखे हुए हैं, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, और उनके आईपीज भी मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो देर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, हु आर मैनेजिंग, जैसे नासा इज वन ऑफ देम, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, कॉन्जेंट कम्युनिकेशन, वेरीसाइन, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है, यूएस आर्मी, राइट। तो इन सभी के पास ये रूट सर्वर्स रखे हुए हैं एंड दे आर मैनेजिंग दोज रूट सर्वर्स, राइट। तो बेसिकली मतलब मैं आपको एक लिस्ट भी दे सकता हूँ, आईना की वेबसाइट पे आप जाओगे ना तो निकल जाएगा, एक लिंक शेयर करता हूँ मैं आपको चैट में, आप वो ओपन करोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। मैंने चैट में डाला है, इनफैक्ट ये मैंने लिंक ओपन भी किया, देखो। तो समझ रहे हैं आप यहाँ पे? ये टोटल 14, आपके 13 इनफैक्ट, राइट। तो आप देख सकते हो कि उनके आईपीस क्या हैं, V4 एज वेल एज IPv6, एंड ये आप देख सकते हो उनके IPv6 एड्रेसेस, राइट। तो ये आईना की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये जो रूट सर्वर्स हैं बेसिकली, ये दीज आर मैनेजेस बाय ऑल दीज ऑपरेटर्स, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, राइट, राइट। सो दैट्स दैट। उसके अलावा अगर आप देखोगे, रूट के बाद फिर आ जाता है आपका टॉप लेवल डोमेन, राइट। जैसे अगर आप देखोगे, या इसको आप सेकंड लेवल डोमेन भी बोलते हो, ठीक है, या टॉप लेवल डोमेन, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। जैसे .com, .edu, .net, .org, .co, ठीक है। तो इनको टॉप लेवल डोमेन्स बोलते हैं, DLDs, ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं सब डोमेन्स, जैसे कि अगर आप बात करोगे FI.com, Cisco.com, राइट, Oracle.com, राइट, iMerita.com, तो इन सबको क्या बोलते हैं हम? सब डोमेन्स। क्या बोलते हैं इनको हम? सब डोमेन। और सब डोमेन की मल्टीपल लेवल सपोर्टेड है, ठीक है।
जैसे F5 के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, टैग, HR। अब टैग के अंदर भी मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, फ्रेड, स्टीव। तो fred.tag.f5.com, ये FQDN बनेगा ना इस यूजर के लिए। ऐसे स्टीव के लिए steve.tag.f5.com, ये FQDN बनेगा। तो कुल मिला के ये है कि जो हमारे सब डोमेन्स होते हैं उसके मल्टीपल लेवल सपोर्टेड होते हैं, राइट। तो ये इस तरीके से आपकी हायरार्की काम करती है। तो सबसे पहले आपका डीएनएस में क्या होता है, रूट सर्वर्स। उसके बाद आ जाते हैं आपके TLDs। और TLDs पे ही आपको क्या रिजर्वेशन कराना पड़ता है, जैसे आप कोई डोमेन परचेज करते हो तो वहां देखना पड़ता है ना आपको TLDs पे अवेलेबल है कि नहीं। अगर किसी ने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, जैसे आइडियली आप GoDaddy पे जाकर के डोमेन परचेज करते हो ना, तो GoDaddy के पास ये डेटाबेस में रहता है कि कौन कौन से डोमेन्स ऑलरेडी लोगों ने परचेज किए हुए हैं, राइट। तो जब आप GoDaddy पे जाकर के कोई डोमेन परचेज करोगे तो वो अपना डेटाबेस देखेगा और बताएगा कि वेदर दिस डोमेन इज इज अवेलेबल और ऑलरेडी सोल्ड आउट। और उसमें फिर ये भी होता है कि लोग कई बार बेच रहे होते हैं, रीसेल कर रहे होते हैं डोमेन को, पहले ही परचेज करके रख लेते हैं, उसके बाद रीसेल के लिए डाल देते हैं, तो कॉस्ट ज्यादा हो जाती है उसकी फिर। बट कुल मिला के अभी समझ में आया होगा कि जब आप GoDaddy पे जाते हो, GoDaddy पे जाकर के डोमेन रिजर्व करने की कोशिश करते हो, तो उसमें आपके पास होता है कि आप किस टाइप की इंडस्ट्री हो, और उस इंडस्ट्री के हिसाब से फिर आप यहाँ पे पिक करते हो .com, .edu, .net या .org। तो ये जो गवर्नमेंट वाला है वो तो गवर्नमेंट के लिए ही रिजर्व्ड है, और EDU मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर एजुकेशन से रिलेटेड, उसका एजुकेशन को, एजुकेशन से रिलेटेड आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर .edu डोमेन आप रखोगे। तो इस तरीके से दिया हुआ है ये, राइट। आइडियली .com आप देखोगे, जैसे imerita.com है ना, इस तरीके से। फिर कई बार क्या होता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल वेबसाइट्स होती है ना एक सेम नाम से, तो सेम नेम से दो तो हो नहीं सकती, तो उस केस में वो कई बार आप देखोगे .com, .net, .org ऐसे बनवा लेते हैं, जैसे imerita.com, imerita.org, राइट, इस तरीके से। तो ये हायरार्की है इसकी। तो डोमेन्स तो बताया, सबसे पहले रूट डोमेन आएगा, रूट के बाद फिर आएगा आपका यहाँ पे आपके TLDs आ जाएंगे, टॉप लेवल डोमेन, तो .edu, .com, .org। तो TLDs का भी आप देख सकते हो कि हु मैनेजेस देम, है ना। हाँ, तो वो भी आप देख सकते हो। तो अगेन जो टॉप लेवल डोमेन्स हैं वो भी कौन मैनेज करता है, आपका आईना, ठीक है। और टॉप लेवल डोमेन्स का आप ये भी देख सकते हो कि वो कौन कौन से हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ वो रखे हुए हैं वो भी आप निकाल के रख सकते हो, राइट। कि जो टॉप लेवल डोमेन्स हैं, हु ऑल, आई मीन उनके IPs क्या है, उनको मैनेज कौन कर रहा है, तो वो लिस्ट आप निकाल सकते हो, वही आईना से निकलेगा, राइट, टॉप लेवल डोमेन का भी। तो ये चीजें हैं इसमें। तो जैसे मैंने आपको आईना की वेबसाइट पे जाकर के निकाल के दिखाया था ना अभी, तो वो सारी चीजें आप इस तरीके से रखोगे, राइट। अब देखो, रूट हो गया आपका, टॉप लेवल डोमेन्स हो गए, और टॉप लेवल डोमेन्स को पता होता है आपके डोमेन सर्वर का IP एड्रेस। जैसे F5.com का कोई DNS होगा ना, तो F5.com की इंफॉर्मेशन इन TLDs के पास होगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रिजर्व, आपको परचेज करना, मैंने बताया ना डोमेन परचेज करना होता है। तो F5 ने F5.com को परचेज किया होगा। जब F5.com को परचेज किया तो वो इंफॉर्मेशन फ्लोट हुई होगी अक्रॉस ऑल योर अवेलेबल। जैसे Fi.com है तो .com के पास जो जितने भी .com वाले TLD सर्वर्स हैं, उन सभी के पास ये इंफॉर्मेशन होगी कि यस वी हैव गॉट ए डोमेन कॉल्ड Fi.com, ठीक है। और वो Fi.com का IP एड्रेस क्या है, वो भी इंफॉर्मेशन इस TLD को दी गई होगी, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे यहाँ पे F5 का एग्जाम्पल लिया है और दूसरा ओरेकल का लिया है, सब किस में आते हैं, TLD.com के अंदर, ठीक है। तो अब जब एक DNS क्वेरी जनरेट होती है, ठीक है, क्या होती है, DNS क्वेरी जनरेट होती है, तो आइडियली जो मशीन होती है आपकी, मतलब जो एक बेसिकली अगर आप देखोगे तो मतलब अगर आपको ये थोड़ा सा देखना है कि किस तरीके से काम करता है,
जो डीएनएस रेजोल्यूशन प्रोसेस है, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से काम कर रहा होता है। तो एक एग्जांपल देता हूं मैं, वैसे हमारे यहाँ पे भी है वो, थोड़ा सा आगे जाओगे ना इसमें भी होगा वो। तो मुझे ड्राइंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं उस पे जाऊंगा। हाँ ये रहा देखो। तो आइडियली जो प्रोसेस फॉलो होता है वो ये वाला प्रोसेस फॉलो होता है। ठीक है। तो होता क्या है कि सबसे पहले आप अपनी मशीन से, ठीक है, मशीन से, जैसे लैपटॉप से आपने www.f5.com को एक्सेस किया, राइट, फर्स्ट टाइम। तो आइडियली सबसे पहले डीएनएस रिक्वेस्ट जाती है लोकल डीएनएस के पास। इसको आप रिजॉल्वर भी बोलते हो। क्या बोलते हो? रिजॉल्वर। तो लोकल डीएनएस के पास जाएगी। अब लोकल डीएनएस सबसे पहले चेक करेगा कि इसके कैश वगैरह में या इसके डेटाबेस में कोई एंट्री तो नहीं है www.f5.com की। अगर नहीं है, अगर नहीं है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली अब ये जो लोकल डीएनएस होगा सबसे पहले, मतलब जिसको आप डीएनएस रिजॉल्वर भी बोल सकते हो, तो ये सबसे पहले जाएगा रूट के पास। वैसे फॉरवर्डर लगा दिया अगर आपने, अ, अगर आपने पहले से फॉरवर्डर लगा करके रखा है यहाँ पे, तो ये फॉरवर्डर के पास जाएगा। फॉरवर्डर कोई दूसरा डीएनएस हो सकता है यहाँ पे। जैसे अगर आप देखोगे जो होम राउटर्स होते हैं आपके, होम राउटर्स, ठीक है, होम राउटर्स आर कॉन्फ़िगर्ड एज ए डीएनएस सर्वर आपकी मशीन के लिए, लैपटॉप के लिए। आज देख भी लेना आप लोग, जब आप आईपी कॉन्फ़िग करके देखोगे ना, आईपी एड्रेस अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में, तो आपको दिखाई देगा कि आपका जो डीएनएस सर्वर है वो भी डिफॉल्ट गेटवे है। और उस डिफॉल्ट गेटवे, मतलब जो मोडेम है, मोडेम को पता होता है कि डीएनएस सर्वर कौन है। तो वहां आईएसपी क्या करता है, जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, वो अपने डीएनएस सर्वर्स की इंफॉर्मेशन कहाँ पे डाल देता है? मोडेम में। और उसके जो अपने डीएनएस सर्वर्स होते हैं उसको पता होता है कि रूट कहाँ पे है, टॉप लेवल डोमेन, मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन, रूट कहाँ पे है बेसिकली वो इंफॉर्मेशन होती है। तो आइडियली अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आप लोकल डीएनएस पे गए। लोकल डीएनएस के पास या तो आंसर होगा या नहीं होगा, राइट। या तो आंसर होगा, डीएनएस क्वेरी का रिस्पॉन्स वो दे देगा। नहीं तो वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पे गए लोकल डीएनएस पे, तो ये लेके जाएगा आप सबसे पहले रूट पे। रूट पे पूछेगा कि डॉट कॉम का आईपी एड्रेस दे दो। वहां पे डॉट कॉम पे जाएगा। डॉट कॉम के पास अब डेटाबेस में होगा F5.com। वहां से F5.com का आईपी एड्रेस मिलेगा, फिर ये F5.com के पास जाएगा और वहां से उसको रियल आईपी एड्रेस मिलेगा और ये क्लाइंट को देगा, और फिर क्लाइंट उस एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्ट करेगा। समझ आया? तो ये प्रोसेस है। तो मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि कैसे डीएनएस रेजोल्यूशन होता है। तो आइडियली जो प्रोसेस होता है वो ये है आपके सामने, कि आप सबसे पहले लोकल डीएनएस पे जाएंगे। अब लोकल डीएनएस पे कई बार क्या लगा देते हो, फॉरवर्डर, तो वो फॉरवर्डर के पास जाएगा और उस फॉरवर्डर से हो सकता है कि उसके पास भी कोई आंसर ना हो, तो सबसे पहले वो रूट के पास जाएगा। रूट उसको टीएलडी का आईपी देगा, फिर वो टीएलडी के पास जाएगा और फिर टीएलडी उसको, जो उसका जिस डोमेन के लिए, जिस एफक्यूडीएन के लिए वो लुक कर रहा था, वो उसका आईपी एड्रेस निकाल के देगा। तो फाइनली F5.com का जो अपना नेम सर्वर है, अब जरूरी नहीं होता कि हर एक डोमेन के लिए कंपनी अपना नेम सर्वर बनाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल iMerita.com, वी आर नॉट दैट मच लार्ज कि हमें अपना डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करने की जरूरत होगी, तो हम आउटसोर्स भी कर देते हैं। तो देर आर मेनी प्रोवाइडर्स लाइक GoDaddy इज वन ऑफ देम। ठीक है, अमेजन पे आप कर सकते हो, है ना। तो आप आउटसोर्स कर सकते हो कि मेरा जो नेम है और आईपी है उसकी होस्टिंग कर दो, राइट। तो आप नेम, अपने नेम और आईपी की होस्टिंग किसी दूसरे डीएनएस सर्वर पे भी करा सकते हो। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, तो जरूरी नहीं होता कि आप अपने डीएनएस सर्वर्स को खुद से मैनेज करें, आप आउटसोर्स भी कर सकते हो, राइट। तो पॉइंट यही है कि सबसे पहले आप अपने लोकल डीएनएस, जो आपका लोकल डीएनएस होता है, आप उसके पास जाओगे, और अगर लोकल डीएनएस के पास कोई आंसर नहीं होता है तो फिर वहां से आप जाते हो रूट के पास। और फिर रूट आपको टीएलडी का आईपी देगा, और टीएलडी से फिर आप आपका जो नेम सर्वर होगा उस डोमेन का, आप सीधे वहां पे जाएंगे और फिर वहां से आपको रियल एप्लीकेशन सर्वर का आईपी एड्रेस मिलेगा, एंड देन फाइनली यू कनेक्ट विद योर एप्लीकेशन सर्वर। प्रोसेस यही होता है। अब मुझे ये बताओ, ये जो डीएनएस रेजोल्यूशन प्रोसेस है, ये क्लैरिटी मिली आपको कि हाँ यहाँ पे एक रूट नेम सर्वर हो गया? अच्छा, ये जो हिरारकी रखी है ना डीएनएस में, ये जो डीएनएस रेजोल्यूशन प्रोसेस है, इसमें जो ये हिरारकी रखी है, ये हिरारकी का मीनिंग समझ आया क्यों रखी? क्योंकि अगर ये हिरारकी नहीं होती ना, तो फिर कैसे समझ में आता कि हाँ ये जो आई, ये मतलब .com .org .gov है ना, तो कुछ तो चाहिए ना। तो इसलिए सेंट्रलाइज्ड क्या होता है, रूट।
रूट के पास सभी टीएलडीज की इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो डॉट कॉम वाले टीएलडीज हैं, या वो डॉट ओआरजी वाले टीएलडीज हैं, या डॉट कॉम वाले हैं, या डॉट गov वाले हैं, वो सभी टीएलडीज की इंफॉर्मेशन यहाँ रहेगी। फिर आपको वो टीएलडी का आईपी देगा, फिर आप टीएलडी के पास जाएंगे। अब जैसे डॉट कॉम का जो टीएलडी है, इसके पास जितने भी डॉट कॉम वाले डोमेन्स होंगे ना, जितने भी डॉट कॉम वाले डोमेन्स है, उन सभी की एंट्री यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से इसने fi.com का आपको आईपी एड्रेस दिया, फिर यहाँ पे तो खैर ठीक है, ये fi.com का नेम सर्वर है, वहां से तो रिस्पॉन्स आ ही जाएगा ना। तो आई होप समझ में आया है ये आप लोगों को, बोलो जो कॉल पे हैं फिलहाल। यस सर। हाँ, तो अभी जो है जो हम बनाने वाले हैं यहाँ पे, हम कोई रूट सर्वर नहीं बनाने वाले हैं, दैट्स वन थिंग। कोई रूट नेम सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे हम। कोई डॉट कॉम जो नेम सर्वर है, टीएलडी मतलब टीएलडीज को कॉन्फ़िगर नहीं करने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू लर्न अबाउट दैम, ठीक है, हमें नहीं करना है वो कॉन्फ़िगर। हमें यहाँ पे एक तो नेम सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, और एक ये लोकल डीएनएस, मतलब हम बेसिकली अपने F5 को बिग आईपी डीएनएस को एज ए लोकल डीएनएस भी यूज कर सकते हैं, और एज ए नेम सर्वर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू लेवरेज दैट। वो मैं बताऊंगा कि इसकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ आप रख सकते हो, प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे हो सकती है F5 डीएनएस की। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं फिलहाल। ये एक आइडिया लगा होगा आपको कि डीएनएस रेजोल्यूशन कैसे होता है, और उसके बेसिस पे फिर यहाँ पे डॉट मतलब रूट है ना, डॉट से ही डिनोट करते हैं ना रूट को यहाँ पे। तो रूट का क्या रोल है, फिर टीएलडीज का क्या रोल है, वो क्लियर हुआ होगा आपको। और ये भी पता चल गया कि हाँ, जो रूट डोमेन है, रूट रूट सर्वर्स जो हैं आपके, दोज आर मैनेज्ड बाय आईना। उसके बाद जो टीएलडीज हैं, वो टीएलडीज आर मैनेज्ड बाय आईना। बट जो सब डोमेन्स हैं, सब डोमेन को मैनेज करती है उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस, और कुछ कंपनियों का तो यही काम है कि वो डीएनएस सर्वर की सर्विसेज एज ए सर्विस वो कस्टमर्स को सेल करते हैं, राइट। तो दैट्स दैट। तो इस तरीके से आप इसको देखोगे। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी होती है एलडीएनएस या लोकल डीएनएस। तो आपके लोकल एरिया नेटवर्क में जो डीएनएस सर्वर होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, एलडीएनएस, राइट। तो जैसे आपके पास लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, तो उस पे वहां पे डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस रहता है ना, तो उसी को क्या बोलोगे आप, एलडीएनएस। तो लोकल एरिया नेटवर्क में ही आप अपना डीएनएस सर्वर रख लेते हो, उसी को एलडीएनएस बोलते हैं। जैसे मैंने कहा ना, आप अपने लैपटॉप पे चेक करो जाके, आईपी कन्फिग कमांड तो चला सकते हो ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। आईपी कन्फिग तो चला ही सकते हो ना। मैंने चेंज किया हुआ है, बट अगर आप देखोगे तो आपका ये नहीं होगा। देखो, आपका ये 1.1.1 ही आ रहा होगा। देखो, जो डिफॉल्ट गेटवे होगा वही डीएनएस सर्वर होगा। आप चेक करो अपने मशीन्स पे। मैंने तो चेंज किया हुआ है, आई नो, मतलब मैंने उसको मॉडिफाई करके ये रखा हुआ है 1.1.1 एंड 8.8.8। बट अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि जो आपका डिफॉल्ट गेटवे है वही क्या है, डीएनएस सर्वर। तो ये जो मोडेम है आपके लिए किसका काम कर रही है, एलडीएनएस का। समझ आया सर कि नहीं आया? यस सर। तो जो मोडेम है आपके लिए एलडीएनएस का काम करती है। तो डीएनएस सर्वर, मेकिंग द डीएनएस सर्वर लोकल to you and is called a local DNS server, right? If you access the internet through an internet service provider, most likely your ISP maintains a DNS server. Likewise, most businesses that are large enough to have their own information technology department will also maintain or can probably maintain their own DNS server. तो जो large enterprise networks होते हैं वो भी अपना DNS server खुद से maintain करते हैं, बाकी सब अपनी DNS सर्विसेज को आउटसोर्स कर देते हैं, राइट। तो वही यहाँ पे मेंशन्ड है, देखो, करेक्ट। तो ट्रेडिशनल बिग आईपी डीएनएस इम्प्लीमेंटेशन डू नॉट कॉन्फ़िगर बिग आईपी डीएनएस एज एन ऑर्गेनाइजेशंस एलडीएनएस। मतलब पहले जो था उसमें एलडीएनएस की तरह आप इसको कॉन्फ़िगर नहीं करते हो, राइट। Big IP DNS adds intelligence to the standard DNS queries and ensures that the best response is provided to the end user. जो ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंटेशन है वो कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं डीएनएस को एज ए एलडीएनएस। लोकल डीएनएस नहीं बनाते हैं हम इसको, बट ऐसा नहीं है कि यूज नहीं कर सकते, एज ए एलडीएनएस कर सकते हो। टेक्निकली आप अपने बिग आईपी को एज ए एलडीएनएस यूज कर सकते हो। इट शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम फॉर यू, बट रिकमेंडेड नहीं है। क्यों? अब हर ब्रांच में अपना एक एलडीएनएस होगा, तो हर ब्रांच में बिग आईपी डीएनएस लगाओगे क्या? नहीं, डीसी में ही लगाने वाले हो, राइट। तो इसलिए अच्छा, बिग आईपी डीएनएस जो है वो इंटेलिजेंट डीएनएस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। इंटेलिजेंस नेम रेजोल्यूशन परफॉर्म करता है ये विद इंटेलिजेंस। और वो मैंने आपको बताया था कल
एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से इसमें इंटेलिजेंस आई हुई है या इंटेलिजेंस आती है। तो मैंने कहा था ना कि जैसे रीजन बेस्ड या कंट्री बेस्ड है ना, तो आप डिफाइन कर सकते हो, रूल्स डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ से आ रहा है तो ये वाले डीएनएस सर्वर का आईपी जाए, वहां से रिक्वेस्ट आई तो फिर दूसरे डीसी का आईपी एड्रेस रिस्पॉन्स में जाना चाहिए, या फिर यूटिलाइजेशन के बेसिस पे भी आप कर सकते हो। सो इट हैज गॉट लॉट मेनी इंटेलिजेंसेस, राइट? तो उसके बेसिस पे फिर आप यूजर ट्रैफिक को डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जब भी बिग आईपी डीएनएस सिस्टम को एक डीएनएस क्वेरी मिलती है ना, तो ये एज्यूम करता है ये एलडीएनएस से आ रही है। कहाँ से आ रही है? एलडीएनएस। ये मतलब एज्यूम करता है ऐसा हमारा बिग आईपी डीएनएस, और ये हमेशा ऐसा ही एज्यूम करेगा। मतलब जो भले ही पीसी डायरेक्टली यूजर से आ रही हो सकता है डायरेक्टली यूजर से आ रही हो, बट ये ऐसा एज्यूम करेगा कि ये कहाँ से आ रही है? एलडीएनएस से आ रही है, राइट? एंड एलडीएनएस क्या है? जो आपके you know, the LDNS are the big IP DNS systems customer, right? तो एंड यूजर्स टिपिकली सेंड देयर क्वेरीज टू देयर एलडीएनएस। यही होता है, पहले वो एलडीएनएस मतलब मोडेम पे जाएगा या फिर किसी माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस जो लोकल डीएनएस होगा वहां पे जाएगा, और वहां से फिर वो प्रॉक्सी होती है रिक्वेस्ट टू अदर सिस्टम्स लाइक बिग आईपी डीएनएस एंड ऑल, ठीक है। तो ये है कि एज ए रिजल्ट जो बिग आईपी डीएनएस होता है वो डायरेक्टली किसी एंड यूजर कंप्यूटर के साथ या एंड यूजर मशीन के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहा होता है, ठीक है। When big IP DNS system measures response time between this and that, and then it actually measures response time from your data center to the LDNS, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा आपको, एक और यहाँ पे डायग्राम आएगा, उसमें समझाऊंगा मैं आपको, आने ही वाला है। देखो एक सेकेंड रुको यहाँ पे। अगर आप इसमें देखोगे, ये जो है इसमें जो बिग आईपी है, बिग आईपी को आपने ऐसे ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर बनाया। ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर मतलब आपने अपने डीसी के अंदर ये डीएनएस सर्वर को यूज किया, ठीक है। ये कहीं डेटा सेंटर में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर, ठीक है। तो ये कहीं डीसी में इंस्टॉल्ड है F5 के, और अब यहाँ पे एक एंड यूजर है, मान के चलो मैं हूं या आप हैं, जैसे आप ही हो गए, ठीक है। तो आप अपनी मशीन पे जब f5.com टाइप करोगे तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाने वाली है सर, बताओगे? लोकल डीएनएस पे, ठीक है। और लोकल डीएनएस से फिर रूट, वो प्रोसेस सेम ही फॉलो होगा यहाँ पे। वंस अगेन रूट से फिर आपको टीएलडी का आईपी मिलेगा, और टीएलडी से फिर आपके सब डोमेन का आईपी मिलेगा, और सब डोमेन पे जाओगे तो वहां वो एक्चुअल में जो आपने आपकी क्वेरी थी कि www.fi.com, तो इस इट हैज गॉट लाइक 2 आईपी एड्रेसेस, और उसने वो आईपी एड्रेस उठा करके किसको देना है? एंड यूजर मशीन को। तो अगर आप देखोगे तो हमारा जो बिग आईपी डीएनएस है वो एज्यूम करता है कि उसके पास जो डीएनएस रिक्वेस्ट आ रही है वो एलडीएनएस से आ रही है। तो ये एलडीएनएस हो गया, देखो, तो यहीं से आई ना रिक्वेस्ट, देखो। अब ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता है कई केसेस में, अगर आप देखोगे कि ये जो आईपी एड्रेस है, ये जो नेम सर्वर का आईपी एड्रेस है बेसिकली, राइट, वो आप इसके डीएनएस में डाल दो डायरेक्टली, तो डायरेक्टली क्वेरी कहाँ पे जाएगी? आपके बिग आईपी डीएनएस पे। बट ध्यान रखना, बिग आईपी डीएनएस यही कंसीडर करेगा कि दीज रिक्वेस्ट आर कमिंग फ्रॉम एलडीएनएस, वो ऐसे ज्यूम करता है, ठीक है। वो इसी तरीके से ज्यूम करेगा। तो ये चीजें हैं इसमें। अब इसको जो बिग आईपी डीएनएस है, आइडियली ठीक है, एज ए एलडीएनएस आप इसको यूज नहीं करोगे, बट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि टेक्निकली नहीं कर सकते, टेक्निकली इट इज पॉसिबल टू यूज योर बिग आईपी डीएनएस एज ए एलडीएनएस। देखो नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखोगे ना, तो इसमें वही है, देखो, बिग आईपी डीएनएस एज द एलडीएनएस, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिग डीएनएस है आपका, एलडीएनएस है, ये देखो, ये एलडीएनएस है, यही क्या है आपका? बिग आईपी डीएनएस। तो यहाँ पे गई रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स देगा, इसके पास कोई जवाब नहीं है, तो ऑब्वियसली ये भी सेम प्रोसेस ही फॉलो करने वाला है। पहले रूट पे जाएगा, रूट से टीएलडी, टीएलडी से फिर जो fi.com का आपका नेम सर्वर होगा उसके पास जाएगा, और वहां से फिर उसको रिस्पॉन्स मिलेगा कि ये आईपी है, और फिर वो आईपी किसको देगा? इस मशीन को, ठीक है। तो आप इसको एज ए एलडीएनएस भी यूज कर सकते हो, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब टेक्निकली यू कैन यूज इट एज ए एलडीएनएस, बट क्यों यूज करोगे एलडीएनएस? तो मतलब थोड़ा आपके लिए, आप कहाँ कहाँ पे लगाओगे? आप हर क्लाइंट पे, हर क्लाइंट को बोलोगे बिग आईपी डीएनएस यूज करो? अब मुझे तो इंटरनेट एक्सेस करना है खाली, मेरा तो मोडेम में काम चल रहा है, वो भी फ्री में लगा के गए हैं एयरटेल वाले, और मैं, मेरे को कोई बोले कि FI DNS लगाओ तुम अपने घर में, तो वुड आई रियली
वुड आई रियली अप्लाई दोज रिकमेंडेशंस? नहीं ना। तो यही रीजन है कि जो एलडीएनएस होगा वो आइडियली आपका F5 नहीं होगा। हाँ, ऑथोरिटेटिव सर्वर्स ही देखने को मिलने वाले हैं आपको, मतलब जो नेम सर्वर्स होंगे ना आपके डोमेन नेम सर्वर्स, वो आपके F5 बिग आईपी बहुत जगहों पे देखने को मिलेंगे। क्योंकि डीएनएस से रिलेटेड बहुत इश्यूज आते हैं प्रोडक्शन में, स्पेशली जब तक ये F5 डीएनएस बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था ना, तो लोग क्या करते थे, खाली माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर यूज करते थे और फिर फायरवॉल लगा के फिल्टरिंग लगा के सिर्फ जो मतलब जो वैलिडेटेड यूजर्स होते थे सिर्फ उनको अलाउ कराएंगे, बट उसमें वी हैड सो मेनी इश्यूज। बीच बीच में डीएनएस अटैक होते रहते थे, फिर डीएनएस सर्विसेज डाउन हो जाती थी। क्योंकि डीएनएस अटैक खाली यही नहीं होता कि डीएनएस सर्वर पे कोई वायरस इंस्टॉल करा के उसको शट डाउन कर दो, ये भी होता है कि इतने क्वेरीज भेजो उसको, इतने क्वेरीज भेजो डीएनएस क्वेरी, जिसको आप डीडोस अटैक बोलते हो, राइट? तो डीडोस अटैक भी करा सकते हो कि इतने क्वेरी जनरेट करो कि डीएनएस सर्वर मतलब पागल हो जाए, वो मतलब जो डीएनएस सर्वर है वो क्वेरीज के रिस्पॉन्स देते देते हैंग करने लगे, राइट? तो वो सब होता है, तो उन सब से बचने के लिए फिर इट इज रिकमेंडेड कि आप बिग आईपी डीएनएस यूज करो, राइट? मतलब बिग आईपी का डीएनएस मॉड्यूल यूज करो फिर आप, अगर उन सब चीजों से बचना है तो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑब्वियसली जो क्लाइंट है, क्लाइंट सबसे पहले इस जब आप ये एंटर करते हो ब्राउजर में, तो क्लाइंट सिस्टम एक डीएनएस क्वेरी जनरेट करेगा और फिर वो जाएगी एलडीएनएस के पास, ठीक है। द बिग आईपी डीएनएस सिस्टम एक्टिंग एज एलडीएनएस, तो वो रिजॉल्व करने का ट्राई करेगा कि उसके पास कुछ वो रिजॉल्व कर पाए। अगर रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो फिर वो रूट के पास जाएगा, रूट से टीएलडी पे जाएगा और टीएलडी से फिर वो अथॉरिटेटिव के पास जाएगा और वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा उसको फिर ये कैश भी कर लेगा और फाइनली वो क्लाइंट को देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये हर बार यही होने वाला है। अगर एक बार ये रेजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ ना यहाँ पे, तो ये जो एलडीएनएस आपका बिग आईपी डीएनएस, ये इस F5.com के लिए इस आईपी को कैश कर लेगा। तो अगर कोई दूसरा यूजर यहीं पे जाना चाहता है और वो भी बिग आईपी डीएनएस के पास गया, तो इस बार इसके कैश में ये एंट्री ऑलरेडी है, तो रिस्पॉन्स लोकली दे देगा। तो जितना टाइम पहले लगा उतना नहीं लगने वाला अब इस बार दूसरे क्लाइंट के लिए, अगर आपने कैशिंग एनेबल करा के रखी है तो। बाय डिफॉल्ट कैशिंग डिसेबल रहती है, बाय डिफॉल्ट ये कैश नहीं करेगा, तो आपको एनेबल कराना पड़ता है कैश को। ध्यान रखना, इंटरनेट जो स्पीड होती है उसका डीएनएस उसके ऊपर डीएनएस का एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। क्योंकि जितना जल्दी ये रेजोल्यूशन नेम रेजोल्यूशन परफॉर्म होगा, उतना जल्दी आपकी क्लाइंट मशीन आपके ऐप सर्वर से कनेक्ट कर पाएगी, राइट? अगर डीएनएस रेजोल्यूशन में टाइम ज्यादा लग रहा है तो आपको ऐसे लगेगा कि यार ये तो एप्लीकेशन बहुत टाइम लगा रही है, इट्स टेकिंग लॉन्ग टाइम टू गेट लोडेड, राइट? यही बोलते हैं ना हम। तो जरूरी नहीं होता कि हमेशा एप्लीकेशन सर्वर की गलती हो। मतलब हमें हमेशा क्या करते हैं, नेटवर्क वालों को डांटना स्टार्ट कर देते हैं, एप्लीकेशन सर्वर वालों को डांटना स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं आपके सर्वर्स वगैरह। डीएनएस वालों पे कम ही ध्यान जाता है, बट डीएनएस भी एक क्या हो सकता है, इश्यू हो सकता है। डीएनएस भी एक रीजन हो सकता है फॉर द लेटेंसी। क्योंकि जितना जल्दी आपका नेम रेजोल्यूशन होगा, नेम टू आईपी ट्रांसलेशन होगी, उतना जल्दी आप उस एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्ट कर पाएंगे। तो जो इंटरनेट की स्पीड है वो डीएनएस के ऊपर भी इक्वली डिपेंड करती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एप्लीकेशन सर्वर्स की ही परफॉर्मेंस बेटर होनी चाहिए, या बीच में जो लोड बैलेंसर्स लगे हैं, राउटर्स लगे हैं, सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस बेस्ट होनी चाहिए। आपको ये भी देखना होगा कि डीएनएस जो रेजोल्यूशन है वो कितने टाइम में हो रहा है, और ये मेजर करने के तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि मेजर नहीं कर सकते आप, है ना। ये सब आप मेजर कर सकते हो कि कितना टाइम लगा नेम रेजोल्यूशन वगैरह में, तो उसके हिसाब से फिर आप लेटेंसी को आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट यही है कि जो बिग आईपी डीएनएस है, इसको आप एज ए ऑथोरिटेटिव सर्वर, एज ए एलडीएनएस आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आ, कुछ डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं आपकी मशीन में, राइट, जो आप यूज कर सकते हो डीएनएस को ट्रबल शूट करते हुए। मतलब बिग आईपी डीएनएस के इश्यूज तो आएंगे ना प्रोडक्शन में। तो एक तो होता है ये डिग कमांड, ठीक है। आप डिग कमांड से पूरा देख सकते हैं। इसमें तो अच्छी बात यह है कि आपको ये इनफैक्ट क्वेरी टाइम और ये सब दिखा देगा कि कितना टाइम लगा इसको रिजॉल्व करने के लिए, है ना। तो वो सब आपको दिखा देगा। तो सबसे बेस्ट कमांड है ये फॉर द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक्स या फॉर द पर्पज ऑफ ट्रबल शूटिंग। मतलब इससे बेस्ट और कोई दूसरी कमांड होती नहीं है। बाकी नॉर्मल
अगर नेम रेजोल्यूशन को देखना है तो उसके लिए तो फिर ये एनएस लुकअप कमांड भी होती है ना। तो एनएस लुकअप आप देख सकते हो कि एनएस लुकअप से जैसे यहाँ पे आप चला सकते हो एनएस लुकअप www.google.com, है ना। एनएस लुकअप www. अच्छा ऐसा क्या, क्या हुआ इसको, मैं कनेक्टेड हूँ इंटरनेट से। रिबूट करना पड़ेगा एक बार मशीन को, अभी नहीं करूंगा छोड़ो। बट ये एनएस लुकअप से आप निकाल सकते हो। एक दूसरा जो कमांड है वो डिग कमांड होता है, राइट। जैसे अगर आप देखोगे तो डिग में आप क्या कर सकते हो, ये अपने डीएनएस सर्वर का आईपी डालो, डिग ऐसे स्पेस @ ठीक है, 8.8.8 और फिर यहाँ पे आप डालो www.google.com, ये कमांड होती है। बट जो डिग कमांड है ये बेसिकली इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, राइट। तो ये आपको इंस्टॉल कराना पड़ता है डिग टूल। ये डायरेक्टली नहीं चलता आपके विंडोज के अंदर। जो डिग कमांड होती है ना डायरेक्टली नहीं चलती है, आपको ये इंस्टॉल कराना पड़ता है डिग को। डिग एक कमांड लाइन टूल होता है, राइट। तो ये आपको विंडोज में इंस्टॉल कराना पड़ता है। वर्जन्स आर अवेलेबल फॉर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग विंडोज। यू मे नीड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल डिग फ्रॉम इंटरनेट। मतलब आपको ये डिग इंस्टॉल कराना पड़ेगा अपने विंडोज में, उसके बाद ही आप ये कमांड को यूज कर पाओगे। बट एनएस लुकअप इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द विंडोज, तो उसमें तो चलता ही है एनएस लुकअप। आई डोंट नो व्हाई इट इज रिफ्यूजिंग फॉर द एनएस लुकअप कमांड। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आईपी कॉन्फ़िग चलाओगे तो वो तो चल रहा है ना। आईपी कॉन्फ़िग /all करोगे तो वो भी दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पे .8.8 है, तो यहाँ पे डीएनएस सर्वर और चल भी रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे पिंग कराओगे google.com तो पिंग तो हो रहा है ना। तो नेम रेजोल्यूशन हो रही है ना। पिंग www.facebook.com, ये भी पिंग हो रहा है। या फिर आपको पिंग कराना है, पिंग से भी आईपी एड्रेस निकल गया ना, देखो पिंग www.imedita.com, आपने इसको भी पिंग करा लिया। तो यहाँ पे पिंग कराते हो रिस्पॉन्स आएगा, रिप्लाई आएगा, तो आपको एप्लीकेशन सर्वर का आईपी दिख जाएगा ना। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। अब ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स होते हैं जहां से आप ये आईपीज वगैरह निकाल सकते हो, चाहे वो एनएस लुकअप हो गया, डिग हो गया, या फिर पिंग करा के आप देख सकते हो कि व्हाट आईपी एड्रेस एग्जैक्टली यू आर गेटिंग, राइट। बट यस, डिग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट कमांड फॉर द डायग्नोस्टिक्स। यहीं से पता चलता है कि कितना टाइम वगैरह लग रहा है। तो आप यहाँ से आउटपुट दे सकते हो क्लाइंट को कि बॉस मेरे डीएनएस की तो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं तो देखो आपको विद इन 15 मिली सेकेंड मैंने आपको रिजॉल्व करके दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसमें एक्सेलरेटिंग डीएनएस रेजोल्यूशन आ गया। मतलब अब आपके आ जाते हैं थोड़ा सा लैब यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे लिसनर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, फिर आपका डीएनएस एक्सप्रेस। अब जैसे हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो देर आर मेनी थिंग्स, राइट। एक्सेलरेशन जब आप कराते हो या कॉन्फ़िगर करने का आप ट्राई कर रहे होते हो, तो सबसे पहले तो आपको एक लिसनर चाहिए। लिसनर से फिर मैं आपको लोड बैलेंसिंग सिखाऊंगा। लोड बैलेंसिंग में आपको लगेगा लेटेंसी आ रही है, उसको प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए फिर डीएनएस कैश कराऊंगा, और कैश में भी छोटे इश्यूज रहेंगे, उसको भी फिक्स करने के लिए फिर डीएनएस एक्सप्रेस हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे कि लिसनर कैसे कॉन्फ़िगर करोगे। फिर उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे डीएनएस एक्सप्रेस। एक्सप्रेस में कुछ नहीं होता, इसमें हम जोन ट्रांसफर कराते हैं। एक ना जोन डेटाबेस बनता है। क्या बनता है? जोन डेटाबेस। जोन्स होते हैं आपके डीएनएस सर्वर्स पे, जैसे फॉरवर्ड लुकअप जोन्स होते हैं, रिवर्स लुकअप जोन्स होते हैं। तो मेनली तो फॉरवर्ड लुकअप जोन्स आप देखोगे तो उसका अपना जोन डेटाबेस बनता है आपके माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर्स के ऊपर। तो इसमें क्या, माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर होगा, उसके पास अपना डेटाबेस होगा, और उस डेटाबेस को हम सिंक करा लेते हैं F5 के साथ में, मतलब F5 डीएनएस के साथ। तो ये डेटाबेस उठा करके F5 डीएनएस को दे देगा। उसके बाद जब इसके पास कोई रिक्वेस्ट आएगी तो यही डेटाबेस में से लुकअप करके दे देगा ना रिस्पॉन्स। इसको आपके बैकएंड माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है किसको कॉन्फ़िगर करने का, डीएनएस एक्सप्रेस को कॉन्फ़िगर करने का। तो इसमें बेसिकली जोन डेटाबेस ट्रांसफर होता है बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर एंड योर F5 डीएनएस। तो करके दिखाऊंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। कैशिंग इनेबल कर सकते हो, उसके अलावा डीएनएस
आप बेसिकली ये भी कर सकते हो, लोड बैलेंसिंग। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि आपका जो बिग आईपी डीएनएस है वो किस तरीके से नेम रेजोल्यूशन परफॉर्म करता है, सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो सीक्वेंस यहाँ पे दी हुई है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि डिसीजन फ्लो, राइट। बिग आईपी डीएनएस रेजोल्यूशन डिसीजन फ्लो, कि ये कैसे डिसीजन लेता है कि कौन सा आईपी एड्रेस इसको रिस्पॉन्स में देना है। तो ध्यान रखना, ये आज के बाद हमेशा ध्यान रखोगे, इंटरव्यू में भी पूछते हैं इसको, राइट। सो पीपल माइट आस्क यू इन इंटरव्यूज एज वेल। सबसे पहले जब डीएनएस रिक्वेस्ट आएगी, क्वेरी आएगी, है ना, डीएनएस क्वेरी आएगी कहाँ पे, बिग आईपी डीएनएस के ऊपर, तो वो देखेगा लिसनर है कि नहीं है। अगर लिसनर ही नहीं है तो फिर तो वो लिसन ही नहीं करेगा ना। जैसे एलटीएम की अगर आप बात करोगे, तो अगर एलटीएम को आप हिट करते हो और उसका वो वर्चुअल आईपी, जो वर्चुअल सर्वर है, उससे मैच नहीं करता डेस्टिनेशन आईपी, तो क्या करेगा एलटीएम, बताओगे। एलटीएम क्या करेगा। ड्रॉप कर दिया। हाँ, ड्रॉप करेगा, सेम डीएनएस भी ड्रॉप कर देगा। तो सबसे पहले तो ये देखेगा कि ये लिसनर से मैच होता है डेस्टिनेशन आईपी कि नहीं करता है, राइट। तो लिसनर से मैच करेगा तो एक्सेप्ट करेगा। फिर वो देखेगा, जब लिसनर पे आया तो प्रोसेस करेगा, देखेगा कि ये किस डोमेन के लिए क्वेरी है। जैसे आपने किया www.google.com, तो ये देखेगा कि मेरे पास वाइड आईपी क्रिएटेड है कि नहीं है इस नेम से। अगर है तो फिर वो वाइड आईपी के बेसिस पे डीएनएस रिप्लाई दे देगा, रिस्पॉन्स दे देगा। और अगर वाइड आईपी नहीं है, क्योंकि वाइड आईपी होने का मतलब है कि यहाँ पे इंटेलिजेंट रेजोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, या होगा। वाइड आईपी, क्योंकि वाइड आईपी जब आप क्रिएट करते हो तो आप बताते हो बहुत सारी चीजें कि आपको किस बेसिस पे डीएनएस रेजोल्यूशन देना है। जियो लोकेशन के बेसिस पे देना है, कंट्री मतलब जियो लोकेशन में आ गया ना, कंट्री, रीजन, वो सारी चीजें। या फिर आपको यूटिलाइजेशन के बेसिस पे रेजोल्यूशन देना है, या फिर आपको आपका एक प्राइमरी डीसी है, एक एक बैकअप डीसी है, तो उस हिसाब से देना है कि एज लॉन्ग एज प्राइमरी इज अवेलेबल। श्रीनी, आप म्यूट करोगे एक बार, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज है। हाँ, थैंक यू। Yeah, I'm sorry. नो वरीज। तो इंटेलिजेंट रेजोल्यूशन होगा उस केस में। बट अगर वाइड आईपी से मैच नहीं किया, मान के चलो आपने जो रिक्वेस्ट भेजी वो www.imerita.com के लिए, और उसके लिए आपने कोई वाइड आईपी नहीं बनाया, तो फिर ये देखेगा यहाँ पे कि ये मेरे जोन डीएनएस एक्सप्रेस जोन कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं है। अगर कॉन्फ़िगर्ड है तो देखेगा यहाँ पे कि जोन डेटाबेस में एंट्री है या नहीं है। और अगर जोन डेटाबेस में भी एंट्री नहीं मिली, मान के चलो एंट्री नहीं है एक्सप्रेस जोन में, तो फिर ये देखेगा कैश, अपनी कैश। और यही प्रायोरिटी है, ध्यान रखना। अगर वाइड आईपी के बेसिस पे डिसीजन हो गया, वाइड आईपी मिल गया उसको, वहां पे वाइड आईपी कॉन्फ़िगर्ड था, तो वहीं से वो रिप्लाई कर देगा, डीएनएस से रिप्लाई। तो आगे वाले ऑप्शंस को देखेगा ही नहीं फिर वो। जैसे बीजीपी में देखा होगा, बेस्ट पाथ सिलेक्शन, बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, देखा है ना आपने बीजीपी में देयर आर मेनी पैरामीटर्स फॉर द बेस्ट पाथ सिलेक्शन, बट होता तो वही है कि अगर पहले मैच हो गया तो उसी के बेसिस पे डिसीजन हो जाएगा। सेम यहाँ पे है, ठीक है। जो डिसीजन होगा, जो पहले मैच कर जाएगा वहीं पे डिसीजन हो जाएगा। तो एक्सप्रेस जोन में एंट्री नहीं मिली तो कैश में जाएगा, और कैश में या तो मिल जाएगी एंट्री या नहीं मिलेगी। मिल जाएगी तो वहीं पे रिस्पॉन्स दे देगा, और नहीं मिली कैश में एंट्री तो फिर यहाँ पे देखेगा एक रिजॉल्विंग कैश। क्या देखेगा, रिजॉल्विंग कैश। ठीक है, रिजॉल्विंग कैश में भी एंट्री अगर इसको नहीं मिली यहाँ पे, ठीक है, रिजॉल्विंग कैश में भी अगर एंट्री नहीं मिलती है, तो मतलब दो चीजें होंगी, या तो मिलेगी या नहीं मिलेगी तो ठीक है, रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। बट अगर रिजॉल्विंग कैश में भी एंट्री नहीं मिली तो फिर ये देखेगा क्या इस लिसनर के पास कोई पूल एसोसिएटेड है। अब या तो पूल एसोसिएटेड होगा या नहीं होगा, है तो ठीक है, एक पूल मेंबर को सेलेक्ट करेगा और उसका आईपी एड्रेस ये डीएनएस रिस्पॉन्स में दे देगा, ठीक है। बट अगर अगर फिर भी यहाँ पे मतलब पूल भी एसोसिएटेड नहीं है, लेट से पूल था ही नहीं कोई पूल एसोसिएटेड, तो फिर ये देखेगा प्रोफाइल के अंदर लोकल बाइंड अलाउड है कि नहीं है, ठीक है। अगर वो भी इनेबल्ड नहीं है तो फिर देखेगा, ठीक है, कि जो लिसनर का आईपी एड्रेस है वो किसी सेल्फ आईपी से मैच करता है, ठीक है। क्या ये सेल्फ आईपी से मैच करता है, लिसनर नॉट ए सेल्फ आईपी, यस, ठीक है। अगर लिसनर क्या नहीं है, सेल्फ आईपी नहीं है, तो फॉरवर्ड टू सर्वर विद लिसनर्स आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि वो पैकेट सीधे उस सर्वर के पास जाएगा, ठीक है।
मतलब जो डीएनएस रिक्वेस्ट है उसको फॉरवर्ड करेगा उस सर्वर के पास जिसका आईपी एड्रेस लिसनर से मैच कर रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ट्राई करेगा मतलब सर्च करने का उसको, पर यहां तक बातें जाती नहीं है। आप जब बिग आईपी को एज ए डीएनएस यूज करना स्टार्ट करते हो ना, तो मैं बताता हूँ आपका मैक्सिमम मैक्सिमम केसेस में ये यूज होता है क्या, इंटेलिजेंट रेजोल्यूशन। और इसीलिए तो यूज करते हो आप, बाकी चीजें तो जो ट्रेडिशनल डीएनएस सर्वर है वो भी सपोर्ट करते हैं, राइट। पर यहाँ पे यही तो एक है इंटेलिजेंस, तो इसीलिए तो बिग आईपी डीएनएस यूज करोगे आप, राइट। बाकी फीचर्स तो दूसरे डीएनएस सर्वर्स भी सपोर्ट कर ही रहे हैं ना। तो नया क्या मिला आपको, क्या यूनिक मिला यहाँ पे, तो वो है इंटेलिजेंट डीएनएस रेजोल्यूशन। इसलिए मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे कि योर डीएनएस रेजोल्यूशन विल बी डन और विल बी परफॉर्म्ड यूजिंग वाइड आईपी। तो आप वाइड आईपी क्रिएट करते हो अपने बिग आईपी के ऊपर, सो मेनी वाइड आईपीज। मतलब जब भी आपको होस्ट एंट्रीज वगैरह क्रिएट करनी होगी ना, तो उसके लिए आप हमेशा वाइड आईपी क्रिएट करने वाले हो, या सर्विस रिकॉर्ड क्रिएट करना होगा। बताऊंगा रिकॉर्ड्स की भी आगे बातें आएंगी डीएनएस में। तो वो सारे रिकॉर्ड्स आप कहाँ क्रिएट करते हो, अपने बिग आईपी पे एज ए वाइड आईपी। ठीक है, तो आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से वाइड आईपी आप क्रिएट करते हो, बट दैट्स दैट। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिसीजन फ्लो। और जब आपको एक्सेलरेट करना हो तो ये अब प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे कि किस तरीके से आप कैशिंग एनेबल कराओगे, राइट, वगैरह वगैरह। तो वो अब मैं आपको कराऊंगा कि किस तरीके से आप लिसनर बनाओगे, लिसनर के बाद उसमें लोड बैलेंस कैसे कराओगे पूल बना करके, फिर उसके बाद फिर किस तरीके से आप यहाँ पे कैशिंग इनेबल करा के उस रेजोल्यूशन को थोड़ा फास्ट कर सकते हो उस प्रोसेस को, राइट। तो वो चीजें, तो अब इसके लिए होंगे प्रैक्टिकल्स, और प्रैक्टिकल्स के लिए क्या चाहिए हमें, लैब। तो लैब एक्सेस करते हैं अब हम, और उसके बाद हम इन बातों को करेंगे वापस से, कौन सा जो डीएनएस रेजोल्यूशन प्रोसेस को, एक प्रोसेस को थोड़ा इंप्रूव करने की बात थी, तो उसके बाद करेंगे। इसको क्लोज करते हैं। डीएनएस का आईपी एक्सेस आपके पास ऑलरेडी है, लॉगिन करो आप। क्योंकि मैंने इसको रीसेट किया, तो फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करोगे तो एडमिन यूजर नेम क्या होना चाहिए, पासवर्ड भी एडमिन। बट ये पासवर्ड को क्या कर देता है, ये एक्सपायर्ड मार्क कर देता है। तो अब न्यू पासवर्ड आप डालोगे यहाँ पे, राइट। न्यू पासवर्ड स्पेसिफाई करो, सेव करो। तो क्योंकि सीएलआई से लॉगिन नहीं किया था ना इस बार मैंने मैनुअली, फर्स्ट टाइम सीएलआई से करता तो उधर वो रीसेट करा लेता। अभी मैंने फर्स्ट टाइम किससे लॉगिन किया, गोई से, क्योंकि मैनेजमेंट आईपी तो सेम ही था ना, उसमें तो चेंज नहीं हुआ था, राइट। अच्छा, अब ये कह रहा है रिबूट इज नीडेड, तो एक बार रिबूट कर ही देते हैं ना, बाद में क्यों करना। इसको स्टॉप किया, फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। स्टॉप स्टार्ट, मिल जाएगा एक्सेस सूनर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा होल्ड करो। फिर बाकी चीजें परफॉर्म करेंगे, इनिशियल सेटअप, फिर इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे एज पर द टोपोलॉजी। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये जो बैकएंड डीएनएस सर्वर हैं ये वाले दोनों, ये मैंने जानबूझ के, ये डीएनएस सर्वर है विंडोज सर्वर, अगर आप इनका एक्सेस लोगे ना तो आपको दिख जाएगा। दिखा देता हूँ, देखो। एक्चुअली इस पे क्या है कि एडी सर्वर भी इंस्टॉल्ड है, तो एडी सर्वर भी है डीएनएस के साथ साथ। हाँ, दिखा देता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये बैकएंड सर्वर है, और इसको मैंने, ये देखो, ये डीएनएस में जा सकते हो आप इसके, तो imerita.com करके मैंने एक डीएनएस मतलब फॉरवर्ड लुकअप जोन बनाया होगा, देखो यहाँ दिखा, imerita.com। और उसके अंदर काफी क्या है, होस्ट एंट्रीज हैं, जैसे hr.imerita.com, राइट। तो उसको आईपीए मिलना चाहिए, it.imerita.com। www.imerita.com के लिए दो एंट्रीज हैं, 555 एंड 6.6.6, राइट। ये किसके लिए, www.imerita.com के लिए। तो मान के चलो ये www.imerita.com मेरा 5.5.5 मतलब DC1 में भी होस्टेड है और DC2 में भी होस्टेड है, राइट। तो इसलिए ये दोनों एंट्रीज क्रिएट करके रखी है एस टी एन एस सर्वर के ऊपर।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो यही आपके इस फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर आपके क्या है, होस्ट ए एंट्रीज। ठीक है, बाकी है डीएनएस के साथ साथ यहाँ पे एडी सर्वर भी है। तो अगर आप चाहोगे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में, तो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाकर के आप देख भी सकते हो ये कि ऑलरेडी ये देखो एडी सर्वर राइट। तो यूजर्स आप देख सकते हो इसमें, या फिर कंप्यूटर्स आप देख सकते हैं इन केस इफ यू नीड दैट, है ना। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा आपका जो डीएनए दूसरा डीएनएस सर्विस को क्लोज कर देता हूँ क्योंकि जरूरत नहीं है ना मेरे को। ठीक है, ऐसे दूसरा डीएनएस सर्वर है यहाँ पे, और इस पे लॉगिन करोगे अगर आप, तो यहाँ भी ऐसे दिखने को मिलने वाला है आपको। ये एडी सर्वर्स के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है, बट डीएनएस शायद इसमें भी इंस्टॉल्ड होना चाहिए, देखेंगे एक बार, है ना।